because Indic Academy organizes almost 3 to 4, sometimes 5 book launches almost every month. And in last 1 year, they have done 150 book launches. Wow. Nobody in 70 years of independent India has ever done this kind of service without expecting anything in return. And I have been told whenever book launches are there, एक तो लोगों को मार के लाना पड़ता है, and most of the people who are there are your family members and friends who have just come and yawning. So it's a very good sight to see so many people. Yesterday I was in Pune and I was told never in the history of Pune so many people came for the book launch. Because somewhere I believe this is not just a book, it's not my story. Somewhere it's a story of every Indian. Especially all those middle class, small town Indians. Some people who are here from Breach Candy may feel bad, but I'm going to say a few things which are not going to be very comfortable. So, thank you everybody. Thank you Sandeep, thank you Jaggi. Jaggi is a rock star of journalism and you must have heard that a lot of people call journalists prostitutes and media traders. But it's a curse on this country because of 5 or 7 people's corruption. Those 7, 8, 10 lakh hard-working journalists, all those who are standing there, which one of them you think is corrupt here? They work in scorching heat, in impossible situations, conditions. But whatever we know about this world today is because of them. So we should, I think, get rid of this habit of always blaming journalists for everything. There are some great journalists like Jaggi who work, you will find him writing an article, standing like this, at the airport, at a taxi stand, in the bus. He's always writing and he's writing good things. Mr. Anupam Kher has, of course, he's one of the best actors we have seen in this 100 years of cinema in this country. But there is something which I want to tell you about Mr. Kher. I came to film industry just by accident. I never planned it. I was in advertising, very comfortable and earning definitely more money than what I'm earning now. But then film happened. Films happened. Television happened. Actually, not films. I was making ad films. And Mr. Kher was the first person who gave me a job in Bombay. And without even asking me anything, he was in a gym. I met him. He said, "Mere saath car mein chalo." He's also an early riser. And I was in the car and he said, I joined his company. And what happened after that, there is a lot of that is in the book, my relationship with him. In 2010, I was doing a workshop called I Am Buddha, how to make creative thinking for global leadership in one of the 10 best business institutes called Indian School of Business in Hyderabad. Some students said that, sir, we have to do a CSR project, corporate social responsibility project. So we want to make a film on Naxalism. I said, Naxalism? I was from Bollywood. I mean, why Naxalism? These kind of films never work. They said, no, you want to make a short film, a documentary. And so I said, who will pay for it? And generally in ISB, they are rich boys because they have to work for a couple of years, then they come to join. So they start with good salaries. They said, we are going to put in our own money. We'll put 20,000 each. Like that, 10 students will make 2 lakhs and we'll make this documentary. So I said, you are going to be the future CEOs of the world and you are going to put in your money. Is this the kind of India you want to build? Go and take some money, make a feature film, go to the masses and make some money out of it. And in no time they said, sir, we got the money. And they got very small amount of money, some 1.5 crores or so. Now the problem... भाई साहब, ओ दादाजी, बैठो ना यार, मैंने बोला नहीं अभी. Awesome, sir. हाँ हाँ अच्छा, इसके बाद आप लोगों को एक क्या प्रॉब्लम उन्होंने रिक्वेस्ट की? बोलिए सर, मेरे मैं तो वैसे ही डिमोरलाइज हो गया उनके जाने से. ओके, एक बात योगिनी has reminded me, so I'm just taking. योगिनी जी ने बोला, मैं आपको एक बात बता दूं. When this film came, lot of people
refused to give it even 1 star. They said this film doesn't even deserve any star. It's a propaganda and all those kind of things. Huffington Post, somebody wrote that. And 2016, when the year ends and they make a list of 10 best films, you'll be surprised. The first film was Dangal, and the second was Buddha in Attack. We sent this book to some of there are 3 or 4 big publishing. We send it to everybody. All of them rejected this book. One of them wrote saying that yes, Vivek may be a good filmmaker, but who is interested in reading his personal account? So, book came. Within 3 days, it touched #1 bestseller in politics category, which is still it is there. मुझे शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम था, रवीश कुमार और शशि थरूर की बुक आगे थी, but now we are #1. Overall, all the books on Amazon, anywhere in the world, it's at number 22. For a new author to even cross top 1000 is impossible. This is unprecedented. This is in top 5 mover shakers on Amazon, and this has, within 3 or 4 days, it went for second reprint, and before the second reprint could come, the demand was so high that today it's in the 4th reprint. And within 10 days, and this all happened in 10 days, we don't even have books to sell outside. Seriously, and there is a major crisis because the publishers thought, ठीक है थोड़ी बहुत किताबें हैं, कुछ लोग जो हैं वो खरीदेंगे. So it has become a movement, so thanks for that. After this, there will be one book which all of us will sign who are on the stage, and that we'll auction. Anybody who wants to take that auction, not because we want to make any money. Garuda is an NGO, I Am Buddha is an NGO, and Indian Academy is an NGO. And these are not the NGOs which run on funding. These are the NGOs where all of us are putting our own money for a certain cause. The cause is, if this book doesn't work, nobody will ever write a book like this. So please, there are not many books, but you can order on Amazon. Normally it takes 1 day. For next 10 days, it's going to take some 3 days, 4 days, because the books are still in publishing. So thank you for your cooperation. Thank you, Vivekji, for sharing your thoughts, what went behind in writing this book. Definitely, it's an inspiration for each and every one of us. And now, yeah, I would like to invite Ramcon KG to come and express his views. Not here, maybe he can sit and do that. मेरे चीफ गेस्ट तो आज ये हैं. You know, life is full of surprises and pleasant surprises. Not that I'm taking anybody. कि कितने intelligent लोग बैठे मेरे अलावा, मतलब कितना अच्छा बोले आप. और विवेक, मैंने बहुत साल आपके साथ काम किया, मगर इतना अच्छा और इतनी clarity of thought है आपकी. It's really fantastic. What an educative session it was. You talked, but मैं तो आज समझा अर्बन एक्सेल के बारे में. That's a fact. I come from a small town. Now it is a huge town. From a lower middle class. मेरा देश मुझसे 8 साल बड़ा है. मैं जिस 55 में बॉर्न हुआ था, हिंदुस्तान 47 में आज़ाद हुआ था, तो मैं हमेशा इंडिया को अपना बड़ा भाई समझ के चलता रहा. It's a fact. That's how I lived. और मुझे बहुत सालों तक पता ही नहीं चला कि देश में या ज़िंदगी में ईमानदारी के अलावा कोई और चीज़ भी होनी चाहिए. Because we were very poor. My father was earning 90 rupees per month, and we were 14 in one family, Dada, Chacha, Bagara. And we were happy. That was the most amazing thing. And once I asked my grandfather, I said, we are very poor, why are we happy? His answer was phenomenal. He said, when you are very poor, the cheapest luxury is happiness. तो मुझे समझ में नहीं आया कि लोग अलग तरह की भी सोचते हैं. जो हमारे स्कूल की प्रेयर थी, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मतलब 8 साल हुए थे आज़ाद हुए को, मगर प्रेयर ये थी. मुझे लगता था, और जितने भी आसपास रहने वाले थे वो कोई क्लर्क था, कोई हेड क्लर्क था. सोसाइटी एंड नेबरहुड वाज द सेम काइंड ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर. ये तो अभी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर वर्ड्स वगैरह मैं अब इस्तेमाल करता हूँ, तब तो सब लोग, मतलब DAV स्कूल में पढ़ा था मैं, हिंदी मीडियम स्कूल में. आई वेंट टू अ स्कूल वेयर ABCD वर टॉट इन 5th स्टैंडर्ड.
मतलब the first time I spoke in English was in Bombay after I came here to become an actor. So for me, life was very simple and everything was, but मुझे तो ये सिखाया गया है. So मुझे कोई भी चीज़ सरप्राइजिंग नहीं लगती थी. I ran away from home, stealing 100 rupees from my mother's temple to give an audition for my acting class. Got caught, got slapped around. मेरे नॉर्मल फादर थे, नॉर्मल मदर थे. मदर बहुत मारती थी बात बात पे. पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल बकवास. मैंने ज़िंदगी में कभी 38% मार्क्स से ज़्यादा नहीं लिए, कभी भी नहीं. मतलब I was never great in sports also. I was so slow that once my PT teacher saw me running, he said, even if you run alone, you will come second. There was nothing extraordinary about me. So when you call me as a major guest today in a book launch, I feel very impressed with myself. So I have a greatest quality, which is, I personally feel, which is a sense of wonder about life. So every time something like this happens, and I feel everybody who is sitting here has 100% got more than 38% marks. ये तो 90 से कोई नहीं. मैं तो आज पागल हो जाता हूँ. 99% पागल हैं क्या? 99% मार्क्स लेने वाले. मतलब पेरेंट्स भी मतलब बेवकूफ़ हैं और बच्चे भी बेवकूफ़ हैं. 99% मार्क्स. But my father celebrated my failures and my mediocrity because उनको पता ही नहीं था कि शायद इंटेलिजेंट क्या मेरा बेटा क्लर्क बने या जो भी बनेगा. It's only when as life unfolded itself, I suddenly discovered that there are other kinds of people also, जो बेईमानी में विश्वास करते हैं, जो चालाकी में विश्वास करते हैं. तो मेरी स्लेट जो थी वो सफ़ेद थी या काली थी, बिल्कुल साफ थी. तो धीरे धीरे उस पर इम्प्रेशन चेंज होते चले गए. When I first went to National School of Drama, that was the first time I encountered that students are different kinds of people also. We had our department of drama, means drama school के जो हमारे director थे, Mr. Alkazi, is finest teacher of actors in acting or drama in the world according to me. अंग्रेजी में बात करते थे और सूट पहनते थे और पढ़े लिखे ऐसे थे, उनको देख के लगता था हे भगवान, परमात्मा खुद एक्टिंग सिखाने आ गए हैं. उनके खिलाफ जब पहली बार मैं 3rd ईयर में था, हड़ताल हुई, आई वॉज शॉक्ड. क्यों? कि ये अंग्रेजी में बात करते हैं, पढ़े लिखे हैं, ऑटोक्रेटिक हैं और हमारे को ड्रामा स्कूल में पंचुअल होने को बोलते हैं, और हमारे को बास्केटबॉल बॉल नहीं खेलने देते हैं, हमको रिक्रिएशन के लिए सैटरडे संडे को छुट्टी नहीं मिलती. मैं सोचता था कि ये 24 घंटे कम है पढ़ने के लिए, 24 घंटे एक्टिंग सीखने के लिए कम है, 7 दिन कम पढ़ते हैं हफ्ते में, 365 दिन कम पढ़ते हैं साल में. आई वॉन्ट टू बी इन द लाइब्रेरी, आई वॉन्ट टू कॉन्स्टेंटली, एंड देर इज़ ए मेजॉरिटी ऑफ ग्रुप पीपल हु आर सेइंग अलकाजी साहब को निकालो, बिकॉज ये जो है इन्होंने डिक्टेटरशिप चला रखी है ड्रामा स्कूल में. दैट वॉज द माई फर्स्ट एनकाउंटर दैट देयर कैन बी ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव अबाउट लाइफ ऑल्सो. There's a different narrative about life also. And Mr. Alkazi was standing there alone, और हम 8 students थे. All 8 of us are very successful today. All those people who went on a hartal have nothing to do in life. Nothing. वो बस नारे लगाते रह गए. और वो मिस्टर अलकाजी वहाँ पर खड़े हैं और ये इट्स लाइक मेरे स्कूल के लोग अगर मेरे खिलाफ आज हड़ताल करें तो आई विल बी शॉक. तो उनके लिए कितनी ह्यूमिलेशन. उन्होंने अपनी ज़िंदगी के, बॉम्बे से गए थे, बॉम्बे में थिएटर करते थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के, उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एस्टैब्लिश किया था. 35 साल उन्होंने दिए थे अपनी लाइफ के, और आज उन्हीं के स्कूल के स्टूडेंट उनको बोल रहे थे ऐसे थोड़ा चलता है स्कूल, ये नहीं होता, यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पर हमको अंग्रेजी में बात करनी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है. हाँ नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मुझे समझ नहीं आएगी. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आज तक नहीं मुझे समझ में क्या होता है हमारे देश में आज जिसका. तो दैट वाज द फर्स्ट एनकाउंटर. दूसरी तो मतलब डराया गया उनको. तो मैंने कहा कि मैं तो मिस्टर अलकाजी के साथ हूँ, बिकॉज ये मेरे गुरु और मैंने जो भी सीखा इनसे सीखा है. तो बोल दिया, वर्ड पड़ गया, चमचा है.
ये साला चमचा है. But I never, my upbringing was that no, I am just believing that what my teacher taught me. Then when I came to Bombay, क्योंकि मुझे अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती थी और मैं अंग्रेज़ी लिख लेता था और अंग्रेज़ी मैं पढ़ लेता था मगर बोलता नहीं था, तो मेरे को कोई सीरियसली लेता ही नहीं था. खासकर ये फिल्म के क्राउड में कि मैं सोचता था मैं इनसे ज़्यादा अच्छा जानता हूँ मगर मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो आई वॉज मेड टू फील स्मॉलर बिकॉज आई कुड नॉट कम्युनिकेट इन इंग्लिश. अगेन माई अपब्रिंगिंग वॉज दैट देयर इज़ नथिंग फील स्मॉलर. हम हिंदी में सारे बात करते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है. बट देयर वॉज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु मेड मी फील स्मॉलर बिकॉज I could not communicate in a language which they thought makes you feel superior. So there is a constant effort which people will make you feel smaller. And if you think that you need to feel smaller, then you will feel smaller. But they will, as you said very correctly, they will confuse you. क्या अंग्रेजी बोलनी ज़रूरी है? तो मेरे एक चाचा जी, हमारे जो चाचा जी एक ही थे ग्रेजुएट हमारे पूरे ख़ानदान में, मतलब उनको मैंने चिट्ठी लिखी और उनको मैंने कहा कि मेरे को अंग्रेज़ी बोलना ज़रूरी है मेरे लिए. तो उन्होंने कहा बेटा किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए बोलना शुरू कर दो. तो मैंने डिसाइड किया जब मैं स्ट्रगलिंग एक्टर था बॉम्बे में कि 4 बजे से लेकर 6 बजे तक मैं सिर्फ अंग्रेज़ी में बात करूँगा. मेरे सारे दोस्त 4 से 6 तक भाग जाते थे मेरे पास. आ गया अभी अंग्रेज़ी में बात करेगा. मैं चाहे सब्जी वाले से बात करनी है, चाहे किसी IAS ऑफिसर का बात करनी है, चाहे किसी अनपढ़ डायरेक्टर प्रोड्यूसर से बात करनी है, आई विल ओनली स्पीक इन इंग्लिश माई फ्रेंड. सो वो भी मैंने कर लिया बिकॉज मेरा पर्पस था कि मैं इनको अपने आप को छोटा महसूस नहीं कराने दूंगा. देन आई सेड काम नहीं मिला, 3 साल तक काम नहीं था. आई हैड टू स्लीप ऑन द प्लेटफॉर्म, आई वाज स्लीपिंग ऑन द बीच, देयर वाज नो वर्क कमिंग अप. आई हैड फिनिश्ड माई exhausted my whatever money I had earned. और मेरे फादर को तो पैसे देने की उनको हिम्मत नहीं थी. I also looked at life from a comic point of view. My first landlady was a धोबन. उनके एक छोटी सी कोई 10 बाय 8 का दुकान उनके घर था. तो बेडरूम में जो था हमारा था वो हम सोते थे 4 लड़के स्टूडेंट्स, और एक किचन जो था वो पर्दे से अलग होता था, उस तरफ उसके बच्चे सोते थे. तो मैंने उसको बोला कि मेरे को एड्रेस दे दो यहाँ का, मेरे को अपने फादर को एड्रेस भेजना है. जब उन्होंने मुझे, उसके बेटे ने जो पढ़ा लिखा नहीं था, उसने कुछ लिख के दिया कि ये मेरा एड्रेस है. जब मैंने एड्रेस देखा तो मैं ज़ोर से मुस्कुराया. उसमें क्या एड्रेस था? अनुपम खेर 2/15 खेरवाड़ी खेरनगर खेर रोड बैंड्रा ईस्ट. भाई साहब अब देखिए, दिस इज व्हाट लाइफ इज अबाउट. इनको मैंने जिंदगी भर के लिए एक स्टोरी दे दी कि अनुपम खेर ने मेरे को रोका. ये अपने बच्चों को बताएंगे, इनके बच्चे इनके बच्चों को बताएंगे, उनके बच्चे उनको बताएंगे. दिस इज अ स्मार्ट मार्केटिंग स्टेप दैट आई हैव डन. सो मेरा कहने का मतलब यह है कि कॉन्स्टेंटली पीपल लाइक दीज विल ट्राई टू मेक यू फील स्मॉलर, will try to make you confused. Finally got a first film. I was 28. I was given the role of a 65-year-old man in Saranch. शूटिंग से 10 दिन पहले मुझे पता लगा, मेरे दोस्त ने कहा कि तेरे को फिल्म से निकाल दिया है. And this is a fact. This is why I'm not scared of anybody, because that is the power of self-made person. जब आप किसी से इस बात से नहीं डरते ना, लोग आपको इस बात से डराते हैं कि ये आपकी कमज़ोरी है. तो मुझे फ़ोन करके किसी ने बोला, मेरे दोस्त सुहास खांडके, उसने कहा मैं कल राजश्री प्रोडक्शन के ऑफिस में गया था और वहाँ पर मैंने सुना है कि तू मेन रोल नहीं कर रहा है, जिसकी मैं 6 महीने से रिहर्सल कर चुका था. रोज़ शिवाजी पार्क जाके बैठता था और देखता था बुज़ुर्ग लोगों को कैसे अपने बच्चों को खिलाते हैं. एंड आई हैड वर्कड वेरी हार्ड फॉर दैट. और 1 जनवरी 1984 को फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी. 20 दिसंबर 1983 दिस फ्रेंड ऑफ माई टोल्ड मी दैट यू आर नॉट doing the main role, Sanjeev Kumar is doing the main role. I was horrified because I was going through worst period of my life. Humiliation, lack of dignity. It was a worst time, and I was an educated gold medalist from the National School of Drama. So I called up Mr. Bhatt and I said, Bhatt साहब मैंने एक अफवाह सुनी है, कितना लोग बकवास करते हैं कि मैंने सुना कि मैं ये रोल नहीं कर रहा हूँ.
भट्ट साहब बड़े कैजुअली बोले, हाँ अनुपम और राजश्री people want a established actor, they are not taking a newcomer, so don't worry, you do the other old man's role, okay, bye. So then I thought, this is an amazing, unbelievable industry that I am made to feel that, and he's so casual about it. In fact, I just went to his house this last night. So मैंने कहा कि मैं इस शहर को छोड़ देता हूँ. This city does not deserve me. I will go back, I will become a teacher, I will become in Lucknow, in Shimla or in Delhi, but I will leave this city. But now I said, now I can tell him what I think of him. Because my grandfather used to say always that if you want to be equal with anybody in the world, just don't expect anything from the other person. If I don't expect anything from, if I'm not expecting anything from you, sir, then we are equals, na? तो मेरे को सडनली इस बात से पावर का एहसास हुआ. मैंने टैक्सी में अपना सारा सामान रखा, होल्ड ऑल होते थे उन दिनों, वो बिस्तर पर लगा के और ट्रंक रखा अपना, और मैं पहुंच गया भट्ट साहब को बताने कि व्हाट डू आई एक्चुअली थिंक ऑफ हिम ऑन माई वे टू VT स्टेशन on the 21st of December 1983. So lift was not working. He was on the 6th floor. Green Acre, I still remember, Pali Hill. पर आदमी को जब बहुत गुस्सा आता है ना तो बहुत शक्ति मिलती है. तो मैं लिफ्ट में गया, मैंने दरवाज़ा खोला, भट्ट साहब को लगा, उन्होंने कहा, अरे दिस इज़ फैंटास्टिक, यू आर टेकिंग, दिस इज़ अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, आई एम ग्लैड यू आर डूइंग द अदर ओल्ड मैन्स रोल. मैंने कहा भट्ट साहब 1 मिनट रुकिए. आई टुक हिम टू हिज विंडो. आई सेड, वो टैक्सी देख रहे हैं, इसमें मेरा सारा सामान पड़ा है, मैं जा रहा हूँ शहर को जाके. पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप दुनिया के सबसे बड़े फ्रॉड हैं. मतलब दिस इज तो वेरी माइल्ड वर्जन ऑफ लैंग्वेज आई एम टॉकिंग टू यू. दिस इज द माइल्डेस्ट. सब बोल रहा था, मतलब जो भी मुंह में आ रहा था. बट आई वॉज क्राइंग ऑल्सो, आई वॉज डेस्परेट, आई वॉज हॉरिफाइड. और फिर मेरे को जब कोई फाइनली एक गुस्से में एक क्लाइमैक्स की लाइन मिलनी बहुत ज़रूरी होती है कि ये अब कोई क्लाइमैक्स की लाइन नहीं मिल रही थी. जब मुझे कुछ नहीं मिला तो मैंने कहा, और भट्ट साहब आप सच्चाई पे फिल्म बना रहे हैं, आप में खुद में सच्चाई नहीं है, आप कैसे ये फिल्म बना सकते हैं सारांश, आपकी फिल्म तो झूठी है. और अब लाइन नहीं मिल रही कोई कमाल की, और आपकी फिल्म झूठी है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैं आपको श्राप देता हूँ. तो मैंने भट्ट साहब को क्या बोला, I was howling. I was desperate. I was so sad. I was so disappointed, so hurt, so dejected. But मैं अब तो मैं हंसते हुए बोल रहा हूँ, बट उस समय और मैं बोल के श्राप देता हूँ, और मुझे लग रहा था यहाँ से कुछ निकल जाए जरा, वो चिंगारियाँ तो मज़ा आ जाए, यहीं पे भस्म हो जाए. मैं फिर 9-6 सीढ़ियाँ उतरा और मैं टैक्सी में बैठा, और भट्ट साहब ऊपर से चिल्लाए, अरे ऊपर आ. अरे ऊपर आ. फिर मैं चढ़ा सीढ़ियाँ, वो आया और मैं ऊपर गया. उन्होंने फ़ोन उठाया और राजश्री में फ़ोन किया. उन्होंने कहा, ये फिल्म तो मैं अनुपम खेर के साथ ही बनाऊंगा. एंड एज दे से रेस्ट इज हिस्ट्री. सो नहीं, ऐसी की तैसी नहीं, मैं कुछ नहीं जानता. तांबे 34 साल से दोस्तों 515 फिल्में करने के बाद ये आदमी बाहर जाना चाहता है. सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट. ओके, इनकी दुकान दूसरी जगह लगने वाली, जाओ. यहाँ की फोटो हो गई, आई कैन अंडरस्टैंड. ओके दादा, थैंक यू. नहीं आई अंडरस्टैंड. नहीं जाओ भी, हटो. तांबे जी आपके फोटोग्राफ मुझे मिले, मुझे अच्छा लगा. सो व्हाट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से, व्हाई दिस होल, दिस हैज नथिंग टू डू विद, बिकॉज मुझे आपने बड़ा इंटेलिजेंट बनाया आज. मुझे पता ही नहीं था कि मैं इस तरह की अच्छी बातें करता हूँ. नो सीरियसली, दिस इज व्हाट माय आई थिंक स्ट्रेंथ इज, दैट आई नेवर रियलाइज दैट मैंने ये जरूर पता था कि जब इन्होंने फिल्म कंप्लीट की तो मैंने कहा विवेक ने के साथ मैंने पहले काम किया, मेरी कंपनी में काम करते थे, इनकी बाकी फिल्में देखी हैं, बट ये फिल्म इसने यहाँ से निकली है, इस फिल्म के बाद ये एज ए पर्सन चेंज हो जाएगा.
बिकॉज दैट इंसिडेंट ऑफ श्राप चेंज्ड मी, इट ऑल्सो मेड मी रियलाइज कि आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई भी आपको निकाल सकता है किसी चक्कर में. The other disillusionment, biggest disillusionment came in the form of India against corruption. India against corruption, again I said हिंदुस्तान के बारे में बात हो रही है. हिंदुस्तान के बारे में पहली बार कुछ ऐसी बात हो रही है जिसमें लोग इकट्ठे हो रहे हैं हज़ारों की तादाद में. I was shooting in Pune. I never knew who Manish Sisodia was, who Arvind Kejriwal was, who I only knew अन्ना हज़ारे. और मैंने उनको खुद फ़ोन करके बोला मैं इस मूवमेंट को ज्वाइन करना चाहता हूँ बिकॉज ये हिंदुस्तान के बारे में है और हिंदुस्तान की एक सर्टन ब्रीड के बारे में है. सो मैं गया और मैंने वहाँ पे स्पीच दी और मैंने बोला और मुझे लगा कि बड़ा अच्छा और कितनी बातें हो रही हैं. एंड इट टर्न्ड आउट टू बी सो डिसअपॉइंटिंग. इट वाज सो डिसअपॉइंटिंग. द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट, वन ऑफ माई बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट इज द आउटकम ऑफ इंडिया अगेंस्ट करप्शन. No. Look at, I see the pictures of Arvind Kejriwal lying down in some office. I feel how the majority of youth of India was conned by these certain people. How means I don't have, मैंने अभी और 500 फिल्म करूँगा मगर मुझे किसी से डरने की, जब आप सच बोलते हैं ना तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है. You see why this book is important today, not because it's and I represent Hindi cinema, Bollywood, so to say that Bollywood में ऐसा बात नहीं, मैं भी Bollywood की बात करता हूँ, ये भी Bollywood फिल्में बनाते हैं, so we are not different. So there is a very strong power in Bollywood. The Hindi cinema has a great power, and I am a complete Hindi film actor, so I don't agree with this that Bollywood does not do things. I'm a part of people that if they listen to me, if I talk about it, that's because I am part of it. So I'm very proud to be part of it. Why is this book important? But again there is a scenario going on where you are made to get confused. आपको लोग आजकल के ज़माने में आपके किचन में घुसाए हैं, आपको क्या खाना चाहिए, आपको क्या नहीं खाना चाहिए. When I started speaking about 2 years back about India and about आज सेना के बारे में बात करो, लोग कहते हैं ऐसा क्या होता है सेना के बारे में, क्या वो अपना काम कर रहे हैं. मतलब कैन यू इमेजिन इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है. If there is a person who is pretending to be the, hopefully they think and their people think that he will be the next prime minister. आज मैं कोका कोला जो है वो पहले शिकंजी बनाता था, देश का प्राइम मिनिस्टर कैसा होगा, ऐसा होगा. Means are you cuckoo about it? I'm sure that he's a very nice person or whatever it is, but I want a prime minister who makes me feel proud of it. But because in the last 4 years there is no corruption, so let's confuse it. यार बड़ा disciplined आदमी है, अपने बारे में सोचता है, हाँ अपने speeches देता रहता है. Every single day there are 5 tweets about somebody who is doing some small work over there. रोज हर संडे को मन की बात करता है. क्या होता है मन की बात, ऐसा थोड़ा होता है, हम भी कर सकते हैं. योगा करता है, योगा पॉपुलर बना दिया. सो हाउ दे आर कंफ्यूजिंग यू दैट द मैन हु इज डूइंग द ग्रेटेस्ट वर्क फॉर आवर कंट्री, लेट अस पुट एलिमेंट ऑफ डाउट इन हिम, अबाउट हिम, विच इज वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड विच मेक्स यू फील वेरी एंग्री. हिंदुस्तान, अनुपम खेर देश के बारे में बात करता है, ज़रूर पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहता होगा. इसकी बीवी बीजेपी में, इसलिए बीजेपी के बारे में बात करता है. इसको फिल्मों में काम नहीं मिलता है, इसलिए ये देश के बारे में बात करता है. सो पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट कंट्री, लेट्स पुट डाउट अबाउट दीज पीपल इन एवरीबडीज माइंड. बहुत अच्छा बोला आपने. मैं कभी बाप माँ 4 थप्पड़ मारेगी कि नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स. आज मैं बीफ खाना चाहता हूँ. माँ तूने आज तक मुझे दूध पिलाया है, आज मुझे बीफ खिला. So, and then they will try to make you, बड़े editors आपके बारे में editorial लिखेंगे. They will try to make you feel, how are you? He is my student. I've seen you after so many years. How wonderful. So, very thankful to you for writing this book. And thankful to you for everybody who came out and are taking the world head on.
because that is the only way. मेरे जहन में एक सेना वाले की इज्जत पता क्या है? It has something very simple incident. I was हमारे शिमला में 4 थिएटर थे, शाही सिनेमा, रिच सिनेमा, रिवोली सिनेमा एंड रीगल सिनेमा. शाही सिनेमा was the strangest kind of theater. उसमें जब तक टिकट विंडो नहीं खुलती थी लाइन होती थी, जैसे टिकट विंडो खुलती थी लाइन टूट जाती थी. उससे पहले लोग प्रिटेंड करते थे कि हम बड़े डिसिप्लिन लोग हैं. तो 2 बदन फिल्म लगी थी मनोज कुमार जी की, 2 बदन. तो हम सब लाइन में खड़े थे, एक्टिंग कर रहे थे, लाइन में खड़े हैं. अभी खिड़की खुलेगी तो खिड़की वाला जो टिकट बेचने वाला होता था उसकी सिर्फ इतनी सी वो पिजन होल होता है ना जैसा छोटा सा, तो उसमें आपको हाथ डालना होता था. वो आपको टिकट पैसे देते थे, आप उसको, वो आपको टिकट देता था. तो मेरे से आगे एक फौजी खड़ा था, वो भी पिक्चर देखने आया था. एंड ये वजह हवलदार फौजी वो खड़ा था और लाइन में खड़ा था. और जैसे ही टिकट खुली हुड़दंग मच गई, लोग ऐसे ऐसे करें. तो उसने भी थोड़ा हिल के अपना पैसा डाला. उसने कहा 2 टिकटें देना. तो बिकॉज देयर वाज टू मच हैपनिंग आउटसाइड, तो अंदर से उसने बोला, किसी ने, उसको पता नहीं था कौन है, उसने कहा कि घबरा मत, देता हूँ. इसको बोला. इस आदमी ने हाथ से उसका गिरेबान उठाया, पकड़ के उसको 2-3 इंच ऊपर किया. उसने कहा हरामजादे, गोली से नहीं घबराया तो तुझसे क्या घबराऊंगा. That will never go out of my system ever. मेरी आंख में मैंने पूरी पिक्चर ऐसे नहीं देखी, ऐसे देखी. गोली से नहीं घबराया भाई साहब, तेरे से क्या. No script writer has written such a more bigger brilliant dialogue than this कि हरामजादे, गोली से नहीं घबराया तो तुझसे क्या घबराऊंगा. So how can I not talk about a man standing on the frontier for and helping us? How can I not applaud a person who is in a वर्दी? आज ये बड़ा आप अच्छा बोला कि the difference between शब्दों का जो खेल आपने बोला कि militant और terrorist. कल परसों एक बहुत बड़े चीफ एडिटर को मार दिया गया है, उसके बारे में थियरीज बनाई जा रही हैं. अरे सीधा बोलो कि टेररिस्ट ने मारा है. इट्स अनफॉर्चुनेट दैट देयर इज अ जर्नलिज्म पर सबसे बड़ा प्रहार जो हुआ है वो परसों कश्मीर में हुआ है कि एक न्यूज़पेपर के एडिटर को मार दिया है. एंड देयर इज नो आउटरेज. दे आर ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ, उसको भी अलग किया जा रहा है कि नहीं शायद कुछ इसको सिर्फ फोर्सेस में से किसी ने शायद मार दिया. हाँ आनंद के ट्वीट से मार. सो हाँ एग्जैक्टली. सो people who are sitting here, please tell your friends, take people head on who are trying to sort of talk about against my country. My country is the best country in the world today. I know it and you know it. और बहुत अच्छा किया आपने ये कॉइन किया ये वर्ड. अच्छा, उनको वो बहुत चिलमिला जाते हैं. वो आपको कैसे डिफेंसिव कर सकते हैं? भक्त है, चमचा है, बीजेपी का स्टूज है, राइट विंगर है. मैं पक्का आपसे बेटर हिंदुस्तानी हूँ. दैट्स द प्रॉब्लम. वो आप में गट्स नहीं. बस मैंने जितना बोलना, और भी कुछ लिखा है, बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू, कुछ भी हो सकता है. कुछ भी हो सकता है. थ्योरी फिर हुई ना. तो मैंने किताब लिख दी. मेरी अभी किताब की बात है. भाई साहब क्या हुआ? मेरी लाइफ में कभी ऐसी इनसिक्योरिटी नहीं हुई. There was a very famous film, To Be or Not to Be. उसमें जो जब टू बी और नॉट टू बी हैमलेट जब स्पीच देता है, तो हैमलेट की जो वाइफ जो रियल उसमें बैठी होती है, वो उसका सीन है. तो उसका लंबा स्पीन है. तो जो एक हीरो जो है वो जाता है बिकॉज दैट इज द ओनली टाइम ही कैन मीट हिज वाइफ और समथिंग लाइक. तो एक्टर के लिए बड़ी इनसिक्योरिटी है कि ऑडियंस उठ के जा रही है. उनका तो समझ में आ रहा है, आप कहाँ जा रहे हैं. सो आई रोट ए बुक in English called The Best Thing About You Is You, about life coaching, not about acting. तो वो बिकॉज सिंपली लिखी थी. मैंने एयरपोर्ट पे लिखता था, मैं उसको लाउंजेस में लिखता था कि एंगर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, एंगर इज़ द वर्स्ट इमोशन इन द वर्ल्ड. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक अबाउट टुडे. इट्स अबाउट योर बुक बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से समथिंग डिफरेंट. सो वो चलते चलते वो
बेस्ट सेलर हो गई तो मैंने अपने पिताजी को कहा, हु वाज वेरी अनवेल, मैंने कहा पापा मेरी किताब अंग्रेजी में बेस्ट सेलर हो गई। तो उन्होंने पता क्या जवाब दिया था, अल्लाह मेहरबान तो गधेड़ा पहलवान। वो सिर्फ एक रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं वही बोल सकता था। तो थैंक यू विवेक फॉर दिस, एंड आई participated in the film and stayed in the hostel or ate with everybody because there is an actor alive in everybody. You don't do a film because of the philosophy, you do the film because of the role. I thought the role had lots of conflicts. It's only after I did the film I realized कि मैं आपसे पूछा भी था, मैंने कहा यार एक प्रोफेसर अपने स्टूडेंट को गलत क्यों बोलेगा? तो उन्होंने कहा खेर साहब आप मेरी बात मान लीजिए, ऐसा होता है। तो हमारे तो सारे जितने प्रोफेसर थे, टीचर थे, वो मेरे एक टीचर की 7 बेटियां थी, वो पढ़ाते कम थे, उनको इसी की टेंशन रहती इनकी बेटियों की शादी कैसे करूँगा। एंड ओवर हियर देयर वाज दिस प्रोफेसर हु वाज एक्चुअली मेकिंग दीज अर्बन nexals फॉर इन द कंट्री। सो थैंक यू फॉर राइटिंग दिस, थैंक यू, इट वाज वेरी एजुकेटिव एंड थैंक यू। आप लोगों ने हंसा मेरे बातों में, मुझे अच्छा लगा, थैंक यू। चलिए आइए भाई साहब। ओ दादाजी बैठो ना यार, मैंने बोला नहीं अभी। awesome, sir. हाँ हाँ, अच्छा इसके बाद आप लोगों को एक क्या प्रॉब्लम उनने रिक्वेस्ट की? बोलिए बोलिए सर, मेरे को मैं तो वैसे ही डिमोरलाइज हो गया उनके जाने से। ओके, एक बात योगिनी हैज रिमाइंडेड मी, सो आई एम जस्ट टेकिंग। योगिनी जी ने बोला, मैं आपको एक बात बता दूं, दिस व्हेन दिस फिल्म केम, लॉट ऑफ पीपल refused to give it even 1 star. They said this film doesn't even deserve any star, it's a propaganda and all those kind of things. Huffington Post, somebody wrote that. And 2016, when the year ends and they make a list of 10 best films, you'll be surprised, the first film was Dangal, and the second was Buddha in Attack. We sent this book to some of the, there are 3 or 4 big publishing, we send it to everybody. All of them rejected this book. One of them wrote saying that yes, Vivek may be a good filmmaker, but who is interested in reading his personal account? So, book came. Within 3 days, it touched #1 bestseller in politics category, which is still it is there. मुझे शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम था, रवीश कुमार और शशि थरूर की बुक आगे थी, but now we are #1. Overall, all the books on Amazon, anywhere in the world, it's at number 22. For a new author to even cross top 1000 is impossible. This is unprecedented. This is in top 5 mover shakers on Amazon, and this has, within 3 or 4 days it went for second reprint, and before the second reprint could come, the demand was so high that today it's in the 4th reprint. And within 10 days, and this all happened in 10 days, we don't even have books to sell outside. Seriously, and there is a major crisis because the publishers thought ठीक है थोड़ी बहुत किताबें हैं, कुछ लोग जो हैं वो खरीदेंगे. So it has become a movement, so thanks for that. After this there will be one book which all of us will sign who are on the stage, and that will auction. Anybody who wants to take that auction, not because we want to make any money. Garuda is a NGO, I Am Buddha is a NGO, and Indic Academy is NGO, and these are not the NGOs which run on funding. These are the NGOs where all of us are putting our own money for a certain cause. The cause is, if this book doesn't work, nobody will ever write a book like this. So please, there are not many books, but you can order on Amazon. Normally it takes 1 day. For next 10 days, it's going to take some 3 days, 4 days, because the books are still in publishing. So thank you for your cooperation. Thank you, Vivek ji, for sharing your thoughts, what went behind in writing this book. Definitely, it's an inspiration for each and every one of us. And now, yeah, I would like to invite Ramphon Kerji to come and express his views. Not here, maybe he can sit and do that. मेरे चीफ गेस्ट तो आज ये हैं.
You know, life is full of surprises and pleasant surprises. Not that I'm taking anybody. कि कितने intelligent लोग बैठे हैं मेरे अलावा, मतलब कितना अच्छा बोले आप और विवेक, मैंने बहुत साल आपके साथ काम किया, मगर इतना अच्छा और इतनी क्लैरिटी ऑफ थॉट है आपकी, इट्स रियली फैंटास्टिक. व्हाट एन एजुकेटिव सेशन इट वाज. यू टॉक, बट मैं तो आज समझा अर्बन एक्सेल के बारे में. दैट्स अ फैक्ट. आई कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, नाउ इट इज़ अ ह्यूज टाउन, फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास. मेरा देश मुझसे 8 साल बड़ा है. मैं जिस 55 में बॉर्न हुआ था, हिंदुस्तान 47 में आज़ाद हुआ था, तो मैं हमेशा इंडिया को अपना बड़ा भाई समझ के चलता रहा. इट्स अ फैक्ट. दैट्स हाउ आई लिव्ड. और मुझे बहुत सालों तक पता ही नहीं चला कि देश में या ज़िंदगी में ईमानदारी के अलावा कोई और चीज़ भी होनी चाहिए. बिकॉज वी वर वेरी पुअर. My father was earning 90 rupees per month and we were 14 in one family, dada, chacha, bagara. And we were happy. That was the most amazing thing. And once I asked my grandfather, I said, we are very poor, why are we happy? His answer was phenomenal. He said, when you are very poor, the cheapest luxury is happiness. तो मुझे समझ में नहीं आया कि लोग अलग तरह की भी सोचते हैं. जो हमारे स्कूल की प्रेयर थी, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मतलब 8 साल हुए थे आज़ाद हुए को, मगर प्रेयर ये थी. सो मुझे लगता था, और जितने भी आसपास रहने वाले थे, वो कोई क्लर्क था, कोई हेड क्लर्क था. सो सोसाइटी एंड नेबरहुड वाज द सेम काइंड ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर. ये तो अभी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर वर्ड्स वगैरह मैं अब इस्तेमाल करता हूँ, तब तो सब लोग, मतलब DAV स्कूल में पढ़ा था मैं, हिंदी मीडियम स्कूल में. आई वेंट टू अ स्कूल वेयर ABCD वर टॉट इन 5th स्टैंडर्ड. मतलब द फर्स्ट टाइम आई स्पोक इन इंग्लिश वॉज इन बॉम्बे आफ्टर आई केम हेयर टू बिकम एन एक्टर. सो फॉर मी लाइफ वॉज वेरी सिंपल एंड एवरीथिंग वॉज, बट मुझे तो ये सिखाया गया है. सो मुझे कोई भी चीज़ सरप्राइजिंग नहीं लगती थी. आई रैन अवे फ्रॉम होम, stealing 100 rupees from my mother's temple to give an audition for my acting class, got caught, got slapped around. मेरे normal father थे, normal mother थे. mother बहुत मारती थी बात पे. पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल बकवास. मैंने ज़िंदगी में कभी 38% मार्क्स से ज़्यादा नहीं लिए, कभी भी नहीं. मतलब I was never great in sports also. I was so slow that once my PT teacher saw me running, he said, even if you run alone, you will come second. There was nothing extraordinary about me. So when you call me as a major guest today in a book launch, I feel very impressed with myself. So I have a greatest quality, which is, I personally feel, which is a sense of wonder about life. So every time something like this happens, and I feel everybody who is sitting here has 100% got more than 38% marks. ये तो 90 से कोई नहीं. मैं तो आज पागल हो जाता हूँ. 99% पागल हैं क्या 99% मार्क्स लेने वाले? मतलब पेरेंट्स भी मतलब बेवकूफ़ हैं और बच्चे भी बेवकूफ़ हैं. 99% मार्क्स. बट माई फादर सेलिब्रेटेड माई फेलियर्स एंड माई मीडियोक्रिटी, बिकॉज उनको पता ही नहीं था कि शायद इंटेलिजेंट क्या मेरा बेटा क्लर्क बने या जो भी बनेगा. इट्स ओनली व्हेन as life unfolded itself, I suddenly discovered that there are other kinds of people also, जो बेईमानी में विश्वास करते हैं, जो चालाकी में विश्वास करते हैं. तो मेरी स्लेट जो थी वो सफ़ेद थी या काली थी, बिल्कुल साफ़ थी. तो धीरे धीरे उस पर इम्प्रेशन चेंज होते चले गए. When I first went to National School of Drama, that was the first time I encountered that students are different kinds of people also. We had our Department of Drama, means drama school के जो हमारे director थे, Mr. Alkazi, is finest teacher of actors in acting or drama in the world according to me. अंग्रेजी में बात करते थे और सूट पहनते थे और पढ़े लिखे ऐसे थे, उनको देख के लगता था हे भगवान, परमात्मा खुद एक्टिंग सिखाने आ गए. उनके खिलाफ जब पहली बार मैं 3rd ईयर में था हड़ताल हुई, आई वॉज शॉक्ड. क्यों?
कि ये अंग्रेज़ी में बात करते हैं, पढ़े लिखे हैं, ऑटोक्रेटिक हैं और हमारे को ड्रामा स्कूल में पंचुअल होने को बोलते हैं और हमारे को बास्केटबॉल बॉल नहीं खेलने देते हैं, हमको रिक्रिएशन के लिए सैटरडे संडे को छुट्टी नहीं मिलती है। मैं सोचता था कि ये 24 घंटे कम है पढ़ने के लिए, 24 घंटे एक्टिंग सीखने के लिए कम है, 7 दिन कम पढ़ते हैं हफ्ते में, 365 दिन कम पढ़ते हैं साल में। आई वॉन्ट टू बी इन द लाइब्रेरी, आई वॉन्ट टू कॉन्स्टेंटली, एंड देर इज़ ए मेजॉरिटी ऑफ ग्रुप पीपल हु आर सेइंग अलकाजी साहब को निकालो, बिकॉज ये जो है इन्होंने डिक्टेटरशिप चला रखी है ड्रामा स्कूल में। दैट वॉज द माई फर्स्ट एनकाउंटर दैट there can be a different perspective about life also. There's a different narrative about life also. And Mr. Alkazi was standing there alone, और हम 8 students थे. All 8 of us are very successful today. All those people who went on a hartal have nothing to do in life. Nothing. वो बस नारे लगाते रह गए। और वो मिस्टर अलकाजी वहाँ पर खड़े हैं और ये इट्स लाइक मेरे स्कूल के लोग अगर मेरे खिलाफ आज हड़ताल करें तो आई विल बी शॉक। तो उनके लिए कितनी ह्यूमिलेशन। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बॉम्बे से गए थे, बॉम्बे में थिएटर करते थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एस्टैब्लिश किया था, 35 साल उन्होंने दिए थे अपनी लाइफ के, और आज उन्हीं के स्कूल के स्टूडेंट उनको बोल रहे थे ऐसे थोड़ा चलता है स्कूल, ये नहीं होता, यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पर हमको अंग्रेजी में बात करनी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। हाँ नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मुझे समझ नहीं आया कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आज तक नहीं मुझे समझ में क्या होता है हमारे देश में आज जिसका। तो दैट वाज द फर्स्ट एनकाउंटर। दूसरी तो मतलब डराया गया उनको। तो मैंने कहा कि मैं तो मिस्टर अलकाजी के साथ हूँ, बिकॉज ये मेरे गुरु और मैंने जो भी सीखा इनसे सीखा है। तो बोल दिया, वर्ड पड़ गया, चमचा है ये साला चमचा है। बट आई नेवर, माई अपब्रिंगिंग वॉज दैट नो, आई एम जस्ट बिलीविंग दैट व्हाट माई टीचर टॉट मी। देन व्हेन आई केम टू बॉम्बे, क्योंकि मुझे अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती थी और मैं अंग्रेज़ी लिख लेता था और अंग्रेज़ी मैं पढ़ लेता था मगर बोलता नहीं था, तो मेरे को कोई सीरियसली लेता ही नहीं था, खासकर ये फिल्म के क्राउड में। कि मैं सोचता था मैं इनसे ज़्यादा अच्छा जानता हूँ मगर मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो आई वॉज मेड टू फील स्मॉलर बिकॉज आई कुड नॉट कम्युनिकेट इन इंग्लिश। अगेन माई अपब्रिंगिंग वॉज दैट देयर इज़ नथिंग फील स्मॉलर, हम हिंदी में सारे बात करते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। बट देयर वॉज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु मेड मी फील स्मॉलर बिकॉज I could not communicate in a language which they thought makes you feel superior. So there is a constant effort which people will make you feel smaller, not, and if you think that you need to feel smaller, then you will feel smaller. But they will, as you said very correctly, they will confuse you. क्या अंग्रेजी बोलनी ज़रूरी है? तो मेरे एक चाचा जी, हमारे जो चाचा जी एक ही थे ग्रेजुएट हमारे पूरे ख़ानदान में, मतलब उनको मैंने चिट्ठी लिखी और उनको मैंने कहा कि मेरे को अंग्रेज़ी बोलना ज़रूरी है मेरे लिए। तो उन्होंने कहा बेटा किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए बोलना शुरू कर दो। तो मैंने डिसाइड किया जब मैं स्ट्रगलिंग एक्टर था बॉम्बे में कि 4 बजे से लेकर 6 बजे तक मैं सिर्फ अंग्रेज़ी में बात करूँगा। मेरे सारे दोस्त 4 से 6 तक भाग जाते थे मेरे पास, आ गया अभी अंग्रेज़ी में बात करेगा। मैं चाहे सब्जी वाले से बात करनी है, चाहे किसी IAS ऑफिसर का बात करनी है, चाहे किसी अनपढ़ डायरेक्टर प्रोड्यूसर से बात करनी है, आई विल ओनली स्पीक इन इंग्लिश माई फ्रेंड। सो वो भी मैंने कर लिया बिकॉज मेरा पर्पस था कि मैं इनको अपने आप को छोटा महसूस नहीं कराने दूंगा। देन आई सेड, काम नहीं मिला, 3 साल तक काम नहीं था। आई हैड टू स्लीप ऑन द प्लेटफॉर्म, आई वाज स्लीपिंग ऑन द बीच, देयर वाज नो वर्क कमिंग अप, आई हैड फिनिश्ड माई exhausted my whatever money I had earned, और मेरे फादर को तो पैसे देने की उनको हिम्मत नहीं थी। I also looked at life from a comic point of view. My first landlady was a धोबन। उनके एक छोटी सी कोई 10 बाय 8 का दुकान, उनके घर था। तो बेडरूम में जो था हमारा था वो हम सोते थे 4 लड़के स्टूडेंट्स, और एक किचन जो था वो पर्दे से अलग होता था, उस तरफ उसके बच्चे सोते थे। तो मैंने उसको बोला कि मेरे को एड्रेस दे दो यहाँ का, मेरे को अपने फादर को एड्रेस भेजना है। जब उन्होंने मुझे, उसके बेटे ने जो पढ़ा लिखा नहीं था, उसने कुछ लिख के दिया कि ये मेरा एड्रेस है। जब मैंने एड्रेस देखा तो मैं ज़ोर से मुस्कुराया।
उसमें क्या एड्रेस था? अनुपम खेर 2/15 खेरवाड़ी खेरनगर खेर रोड बैंड्रा ईस्ट। भाई साहब, अब देखिए, दिस इज व्हाट लाइफ इज अबाउट। इनको मैंने जिंदगी भर के लिए एक स्टोरी दे दी कि अनुपम खेर ने मेरे को रोका। ये अपने बच्चों को बताएंगे, इनके बच्चे इनके बच्चों को बताएंगे, उनके बच्चे उनको बताएंगे। दिस इज अ स्मार्ट मार्केटिंग स्टेप दैट आई हैव डन। सो मेरा कहने का मतलब यह है कि कॉन्स्टेंटली पीपल लाइक दीज विल ट्राई टू मेक यू फील स्मॉलर, विल ट्राई टू मेक यू कंफ्यूज। Finally got a first film. I was 28. I was given the role of a 65-year-old man in Saranch. शूटिंग से 10 दिन पहले मुझे पता लगा, मेरे दोस्त ने कहा कि तेरे को फिल्म से निकाल दिया है। And this is a fact. This is why I'm not scared of anybody, because that is the power of self-made person. जब आप किसी से इस बात से नहीं डरते ना, लोग आपको इस बात से डराते हैं कि ये आपकी कमज़ोरी है। तो मुझे फ़ोन करके किसी ने बोला, मेरे दोस्त सुहास खांडके, उसने कहा मैं कल राजश्री प्रोडक्शन के ऑफिस में गया था और वहाँ पर मैंने सुना है कि तू मेन रोल नहीं कर रहा है, जिसकी मैं 6 महीने से रिहर्सल कर चुका था। रोज़ शिवाजी पार्क जाके बैठता था और देखता था बुज़ुर्ग लोगों को कैसे अपने बच्चों को खिलाते हैं। एंड आई हैड वर्कड वेरी हार्ड फॉर दैट। और 1 जनवरी 1984 को फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी। 20 दिसंबर 1983 दिस फ्रेंड ऑफ माई टोल्ड मी दैट यू आर नॉट डूइंग द मेन रोल, संजीव कुमार इज डूइंग द मेन रोल। I was horrified because I was going through worst period of my life, humiliation, lack of dignity. It was a worst time, and I was an educated gold medalist from the National School of Drama. So I called up Mr. Bhatt and I said, Bhatt साहब, मैंने एक अफवाह सुनी है, कितना लोग बकवास करते हैं कि मैंने सुना कि मैं ये रोल नहीं कर रहा हूँ। तो भट्ट साहब बड़े कैजुअली बोले, हाँ अनुपम और राजश्री people want an established actor, they are not taking a newcomer, so don't worry, you do the other old man's role, okay, bye. So then I thought, this is an amazing, unbelievable industry that I am made to feel that, and he's so casual about it. In fact, I just went to his house last night. So मैंने कहा कि मैं इस शहर को छोड़ देता हूँ. This city does not deserve me. I will go back. I will become a teacher. I will become in Lucknow, in Shimla, or in Delhi. But I will leave this city. But now I said, now I can tell him what I think of him. Because my grandfather used to say always that if you want to be equal with anybody in the world, just don't expect anything from the other person. If I don't expect anything from, if I'm not expecting anything from you, sir, then we are equals, ना? तो मेरे को सडनली इस बात से पावर का एहसास हुआ. मैंने टैक्सी में अपना सारा सामान रखा, होल्ड ऑल होते थे उन दिनों, वो बिस्तर लगा के और ट्रंक रखा अपना, और मैं पहुंच गया भट्ट साहब को बताने कि व्हाट डू आई एक्चुअली थिंक ऑफ हिम. On my way to VT station on the 21st of December 1983. So lift was not working. He was on the 6th floor. Green Acre, I still remember, Pali Hill. पर आदमी को जब बहुत गुस्सा आता है ना तो बहुत शक्ति मिलती है. तो मैं लिफ्ट में गया, मैंने दरवाज़ा खोला, भट्ट साहब को लगा, उन्होंने कहा, अरे दिस इज़ फैंटास्टिक, यू आर टेकिंग, दिस इज़ अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, आई एम ग्लैड यू आर डूइंग द अदर ओल्ड मैन्स रोल. मैंने कहा भट्ट साहब एक मिनट रुकिए. आई टुक हिम टू हिज विंडो. आई सेड, वो टैक्सी देख रहे हैं, इसमें मेरा सारा सामान पड़ा है, मैं जा रहा हूँ शहर को जाके. पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप दुनिया के सबसे बड़े फ्रॉड हैं. मतलब दिस इज तो वेरी माइल्ड वर्जन ऑफ लैंग्वेज आई एम टॉकिंग टू यू. दिस इज द माइल्डेस्ट. सब बोल रहा था मैं, मतलब जो भी मुंह में आ रहा था. बट आई वॉज क्राइंग ऑल्सो, आई वॉज डेस्परेट, आई वॉज हॉरिफाइड. और फिर मेरे को जब कोई फाइनली एक गुस्से में एक क्लाइमैक्स की लाइन मिलनी बहुत ज़रूरी होती है कि ये अब कोई क्लाइमैक्स की लाइन नहीं मिल रही थी. जब मुझे कुछ नहीं मिला तो मैंने कहा, और भट्ट साहब आप सच्चाई पे फिल्म बना रहे हैं, आप में खुद में सच्चाई नहीं है, आप कैसे ये फिल्म बना सकते हैं सारांश? आपकी फिल्म तो झूठी है और अब लाइन नहीं मिल रही कोई कमाल की, और आपकी फिल्म झूठी है. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैं आपको श्राप देता हूँ. तो मैंने भट्ट साहब को क्या बोला, I was howling. I was desperate. I was so sad. I was so disappointed, so hurt, so dejected. But अब तो मैं हंसते हुए बोल रहा हूँ, बट उससे और मैं बोल के श्राप देता हूँ, और मुझे लग रहा था यहाँ से कुछ निकल जाए जरा.
वो चिंगारियाँ मिंगारियाँ तो मज़ा आ जाए, यहीं पे भस्म हो जाए। मैं फिर 9-6 सीढ़ियाँ उतरा और मैं टैक्सी में बैठा और भाई साहब ऊपर से चिल्लाया, अरे ऊपर आ, ऊपर आ। अरे ऊपर आ। फिर मैं चढ़ा सीढ़ियाँ, वो आया और मैं ऊपर गया। उन्होंने फ़ोन उठाया और राजश्री में फ़ोन किया। उन्होंने कहा ये फिल्म तो मैं अनुपम खेर के साथ ही बनाऊंगा। एंड एज दे से रेस्ट इज हिस्ट्री। नहीं ऐसी की तैसी नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। तांबे 34 साल से दोस्तों 515 फिल्में करने के बाद ये आदमी बाहर जाना चाहता है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जाओ, ओके, इनकी दुकान दूसरी जगह लगने वाली, जाओ। यहाँ की फोटो हो गई, आई कैन अंडरस्टैंड। ओके दादा, थैंक यू। नहीं आई अंडरस्टैंड। नहीं जाओ, अभी हटो। तांबे जी आपके फोटोग्राफ मुझे मिले, मुझे अच्छा लगा। सो व्हाट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से, व्हाई दिस होल, दिस हैज नथिंग टू डू विद, बिकॉज मुझे आपने बड़ा इंटेलिजेंट बनाया आज। मुझे पता ही नहीं था कि मैं इस तरह की अच्छी बातें करता हूँ। नो सीरियसली, दिस इज व्हाट माय आई थिंक स्ट्रेंथ इज, दैट आई नेवर रियलाइज दैट मैंने ये जरूर पता था कि जब इन्होंने फिल्म कंप्लीट की तो मैंने कहा विवेक ने के साथ मैंने पहले काम किया, मेरी कंपनी में काम करते थे, इनकी बाकी फिल्में देखी हैं, बट ये फिल्म इसने यहाँ से निकली है, इस फिल्म के बाद ये एज ए पर्सन चेंज हो जाएगा। बिकॉज दैट इंसिडेंट ऑफ श्राप चेंज्ड मी, इट ऑल्सो मेड मी रियलाइज कि आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई भी आपको निकाल सकता है किसी चक्कर में। द अदर डिसइल्यूजनमेंट, बिगेस्ट डिसइल्यूजनमेंट केम in the form of India against corruption. India against corruption, again I said हिंदुस्तान के बारे में बात हो रही है। हिंदुस्तान के बारे में पहली बार कुछ ऐसी बात हो रही है जिसमें लोग इकट्ठे हो रहे हैं हज़ारों की तादाद में। आई वाज शूटिंग इन पुणे, आई नेवर न्यू हु मनीष सिसोदिया वाज, हु अरविंद केजरीवाल वाज, हु आई ओनली न्यू अन्ना हज़ारे। और मैंने उनको खुद फ़ोन करके बोला मैं इस मूवमेंट को ज्वाइन करना चाहता हूँ बिकॉज ये हिंदुस्तान के बारे में है और हिंदुस्तान की एक सर्टन ब्रीड के बारे में है। सो मैं गया और मैंने वहाँ पे स्पीच दी और मैंने बोला और मुझे लगा कि बड़ा अच्छा है और कितनी बातें हो रही हैं। एंड इट टर्न्ड आउट टू बी सो डिसअपॉइंटिंग, इट वाज सो डिसअपॉइंटिंग। द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट, वन ऑफ माई बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट इज द आउटकम ऑफ इंडिया अगेंस्ट करप्शन। No, look at I see the pictures of Arvind Kejriwal lying down in some office. I feel how the majority of youth of India was conned by these certain people. How means I don't have, मैंने अभी और 500 फिल्म करूँगा मगर मुझे किसी से डरने की, जब आप सच बोलते हैं ना तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। You see why this book is important today, not because it's and I represent Hindi cinema, Bollywood, so to say that Bollywood में ऐसा बात नहीं, मैं भी Bollywood की बात करता हूँ, ये भी Bollywood फिल्में बनाते हैं, so we are not different. So there is a very strong power in Bollywood. The Hindi cinema has a great power, and I am a complete Hindi film actor, so I don't agree with this that Bollywood does not do things. I'm a part of people that if they listen to me, if I talk about it, that's because I am part of it. So I'm very proud to be part of it. Why is this book important? But again there is a scenario going on where you are made to get confused. आपको लोग आजकल के ज़माने में आपके किचन में घुसाए हैं, आपको क्या खाना चाहिए, आपको क्या नहीं खाना चाहिए। When I started speaking about 2 years back about India and about आज सेना के बारे में बात करो, लोग कहते हैं ऐसा क्या होता है सेना के बारे में, क्या वो अपना काम कर रहे हैं। मतलब कैन यू इमेजिन, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। if there is a person who is pretending to be the, hopefully they think and their people think that he will be the next prime minister.
आज मैं कोका कोला जो है वो पहले शिकंजी बनाता था, देश का प्राइम मिनिस्टर कैसा होगा, ऐसा होगा. Means, are you cuckoo about it? I'm sure that he's a very nice person or whatever it is, but I want a prime minister who makes me feel proud of it. But because in the last 4 years there is no corruption, there is no, so let's confuse it. यार बड़ा disciplined आदमी है, अपने बारे में सोचता है, हाँ अपने speeches देता रहता है. Every single day there are 5 tweets about somebody who is doing some small work over there. रोज हर संडे को मन की बात करता है. क्या होता है मन की बात? ऐसा थोड़ा होता है, हम भी कर सकते हैं. योगा करता है, योगा पॉपुलर बना दिया. सो हाउ दे आर कंफ्यूजिंग यू दैट द मैन हु इज डूइंग द ग्रेटेस्ट वर्क फॉर आवर कंट्री, लेट अस पुट एलिमेंट ऑफ डाउट इन हिम, अबाउट हिम, which is very disappointing and which makes you feel very angry. हिंदुस्तान, अनुपम खेर देश के बारे में बात करता है, जरूर पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहता होगा. इसकी बीवी बीजेपी में, इसलिए बीजेपी के बारे में बात करता है. इसको फिल्मों में काम नहीं मिलता है, इसलिए ये देश के बारे में बात करता है. सो पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट कंट्री, लेट्स पुट डाउट अबाउट दीज पीपल इन एवरीबडीज माइंड. बहुत अच्छा बोला आपने. मैं कभी बाप माँ 4 थप्पड़ मारेगी कि नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स. आज मैं बीफ खाना चाहता हूँ. माँ तूने आज तक मुझे दूध पिलाया है, आज मुझे बीफ खिला. So, and then they will try to make you, बड़े बड़े editors आपके बारे में editorial लिखेंगे. They will try to make you feel, how are you? He is my student. I've seen you after so many years. How wonderful. So, very thankful to you for writing this book. And thankful to you for everybody who came out and are taking the world head on. Because that is the only way. मेरे जहन में एक सेना वाले की इज्जत पता क्या है? इट हैज समथिंग वेरी सिंपल इंसिडेंट. आई वाज वॉच, हमारे शिमला में 4 थिएटर थे, शाही सिनेमा, रिट्ज सिनेमा, रिवोली सिनेमा एंड रीगल सिनेमा. शाही सिनेमा वाज द स्ट्रेंजेस्ट काइंड ऑफ थिएटर. उसमें जब तक टिकट विंडो नहीं खुलती थी, लाइन होती थी. जैसे टिकट विंडो खुलती थी, लाइन टूट जाती थी. उससे पहले लोग प्रिटेंड करते थे कि हम बड़े डिसिप्लिन लोग हैं. तो 2 बदन फिल्म लगी थी मनोज कुमार जी की, 2 बदन. तो हम सब लाइन में खड़े थे, एक्टिंग कर रहे थे, लाइन में खड़े हैं. अभी खिड़की खुलेगी तो खिड़की वाला जो टिकट बेचने वाला होता था, उसकी सिर्फ इतनी सी वो पिजन होल होता है ना, जैसा छोटा सा, तो उसमें आपको हाथ डालना होता था. वो आपको टिकट, पैसे देते थे आप उसको, वो आपको टिकट देता था. तो मेरे से आगे एक फौजी खड़ा था, वो भी पिक्चर देखने आया था. एंड ये वजह हवलदार फौजी वो खड़ा था और लाइन में खड़ा था. और जैसे ही टिकट खुली, हुड़दंग मच गई, लोग ऐसे ऐसे करें. तो उसने भी थोड़ा हिल के अपना पैसा डाला. उसने कहा 2 टिकटें देना. तो बिकॉज देयर वाज टू मच हैपनिंग आउटसाइड, तो अंदर से उसने बोला, किसी ने, उसको पता नहीं था कौन है, उसने कहा कि घबरा मत, देता हूँ. इसको बोला. इस आदमी ने हाथ से उसका गिरेबान उठाया, पकड़ के उसको 2-3 इंच ऊपर किया. उसने कहा, हरामजादे, गोली से नहीं घबराया तो तुझसे क्या घबराऊंगा. That will never go out of my system ever. मेरी आंख में मैंने पूरी पिक्चर ऐसे नहीं देखी, ऐसे देखी. गोली से नहीं घबराया भाई साहब, तेरे से क्या. No script writer has written such a more bigger brilliant dialogue than this कि हरामजादे, गोली से नहीं घबराया तो तुझसे क्या घबराऊंगा. So how can I not talk about a man standing on the frontier for and helping us? How can I not applaud a person who is in a वर्दी? आज ये बड़ा आप अच्छा बोला कि the difference between, शब्दों का जो खेल आपने बोला कि militant और terrorist. कल परसों एक बहुत बड़े चीफ एडिटर को मार दिया गया है, उसके बारे में थियरीज बनाई जा रही हैं. अरे सीधा बोलो कि टेररिस्ट ने मारा है. इट्स अनफॉर्चुनेट दैट देयर इज अ जर्नलिज्म पर सबसे बड़ा प्रहार जो हुआ है वो परसों कश्मीर में हुआ है कि एक न्यूज़पेपर के एडिटर को मार दिया है. एंड देयर इज नो आउटरेज. दे आर ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ, उसको भी अलग किया जा रहा है कि नहीं, शायद कुछ इसको सिर्फ फोर्सेस में से किसी ने शायद, हाँ, सो हाँ, एग्जैक्टली. सो
people who are sitting here, please tell your friends, take people head on who are trying to sort of talk about against my country. My country is the best country in the world today. I know it. And you know it. और बहुत अच्छा किया आपने ये कॉइन किया ये वर्ड. अच्छा, उनको वो बहुत चिलमिला जाते हैं. वो आपको कैसे डिफेंसिव कर सकते हैं? भक्त है, चमचा है, बीजेपी का स्टूज है, राइट विंगर है. मैं पक्का आपसे बेटर हिंदुस्तानी हूँ. दैट्स द प्रॉब्लम. वो आप में गट्स नहीं. बस मैंने जितना बोलना, और भी कुछ लिखा है जरा. बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू. कुछ भी हो सकता है. कुछ भी हो सकता है. थ्योरी फिर हुई ना. तो मैंने किताब लिख दी. मेरी अभी किताब की बात है. भाई साहब क्या हुआ? मेरी लाइफ में कभी ऐसी इनसिक्योरिटी नहीं हुई. There was a very famous film, To Be or Not to Be. उसमें जो जब टू बी और नॉट टू बी हैमलेट जब स्पीच देता है, तो हैमलेट की जो वाइफ जो रियल उसमें बैठी होती है, वो उसका सीन, तो उसका लंबा स्पीन है. तो जो एक हीरो जो है वो जाता है बिकॉज दैट इज द ओनली टाइम ही कैन मीट हिज वाइफ और समथिंग लाइक. तो एक्टर के लिए बड़ी इनसिक्योरिटी है कि ऑडियंस उठ के जा रही है. उनका तो समझ में आ रहा है, आप कहाँ जा रहे हैं. सो आई रोट ए बुक in English called The Best Thing About You Is You, about life coaching, not about acting. तो वो बिकॉज सिंपली लिखी थी. मैंने एयरपोर्ट पे लिखता था, मैं उसको लाउंजेस में लिखता था कि एंगर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, एंगर इज़ द वर्स्ट इमोशन इन द वर्ल्ड. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक अबाउट टुडे. इट्स अबाउट योर बुक, बट आई एम ट्राइंग टू से समथिंग डिफरेंट. सो वो चलते चलते वो बेस्ट सेलर हो गई. तो मैंने अपने पिताजी को कहा, हु वाज वेरी अनवेल, मैंने कहा पापा मेरी किताब अंग्रेजी में बेस्ट सेलर हो गई. तो उन्होंने पता क्या जवाब दिया था? अल्लाह मेहरबान तो गधेड़ा पहलवान. वो सिर्फ एक रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं वही बोल सकता था. तो थैंक यू विवेक फॉर दिस. एंड आई पार्टिसिपेटेड इन द फिल्म एंड स्टेड in the hostel or ate with everybody because there is an actor alive in everybody. You don't do a film because of the philosophy. You do the film because of the role. I thought the role had lots of conflicts. It's only after I did the film I realized कि मैं आपसे पूछा भी था. मैंने कहा यार एक प्रोफेसर अपने स्टूडेंट को गलत क्यों बोलेगा? तो उन्होंने कहा खेर साहब आप मेरी बात मान लीजिए, ऐसा होता है. तो हमारे तो सारे जितने प्रोफेसर थे, टीचर थे, वो मेरे एक टीचर की 7 बेटियां थी. वो पढ़ाते कम थे, उनको इसी की टेंशन रहती, इनकी बेटियों की शादी कैसे करूँगा. एंड ओवर हियर देयर वाज दिस प्रोफेसर हु वाज एक्चुअली मेकिंग दीज अर्बन नेक्सल्स फॉर इन द कंट्री. सो थैंक यू फॉर राइटिंग दिस. थैंक यू. इट वाज वेरी एजुकेटिव एंड थैंक यू. आप लोगों ने हंसा मेरे बातों में, मुझे अच्छा लगा. थैंक यू. चलिए आइए भाई साहब. ओ दादाजी बैठो ना यार. मैंने बोला नहीं अभी. awesome, sir. हाँ हाँ. अच्छा, इसके बाद आप लोगों को एक क्या प्रॉब्लम उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं बोलिए सर. मेरे को मैं तो वैसे ही डिमोरलाइज हो गया उनके जाने से. ओके, एक बात योगिनी हैज रिमाइंडेड मी, सो आई एम जस्ट टेकिंग. योगिनी जी ने बोला, मैं आपको एक बात बता दूं. दिस व्हेन दिस फिल्म केम, लॉट ऑफ पीपल refused to give it even 1 star. They said this film doesn't even deserve any star. It's a propaganda and all those kind of things. Huffington Post, somebody wrote that. And 2016, when the year ends and they make a list of 10 best films, you'll be surprised. The first film was Dangal, and the second was Buddha in Attack. We sent this book to some of the, there are 3 or 4 big publishing. We send it to everybody. All of them rejected this book. One of them wrote saying that yes, Vivek may be a good filmmaker, but who is interested in reading his personal account? So, book came.
Within 3 days, it touched #1 bestseller in politics category, which is still it is there. मुझे शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम था, रवीश कुमार और शशि थरूर की बुक आगे थी, but now we are #1. Overall, all the books on Amazon, anywhere in the world, it's at number 22. For a new author to even cross top 1000 is impossible. This is unprecedented. This is in top 5 mover shakers on Amazon, and this has within 3 or 4 days it went for second reprint, and before the second reprint could come, the demand was so high that today it's in the 4th reprint. And within 10 days, and this all happened in 10 days, we don't even have books to sell outside. Seriously, and there is a major crisis because the publishers thought कि ठीक है थोड़ी बहुत किताबें हैं, कुछ लोग जो हैं वो खरीदेंगे. So it has become a movement, so thanks for that. After this, there will be one book which all of us will sign who are on the stage, and that will auction. Anybody who wants to take that auction, not because we want to make any money. Garuda is a NGO, I Am Buddha is a NGO, and Indic Academy is NGO. And these are not the NGOs which run on funding. These are the NGOs where all of us are putting our own money for a certain cause. The cause is, if this book doesn't work, nobody will ever write a book like this. So please, there are not many books, but you can order on Amazon. Normally it takes 1 day. For next 10 days, it's going to take some 3 days, 4 days, because the books are still in publishing. So thank you for your cooperation. Thank you, Vivek ji, for sharing your thoughts, what went behind in writing this book. Definitely, it's an inspiration for each and every one of us. And now, yeah, I would like to invite Rampon Kev ji, who's come. Not here, maybe he can sit and do that. मेरे चीफ गेस्ट तो आज ये हैं. You know, life is full of surprises and pleasant surprises. Not that I'm taking anybody. कि कितने इंटेलिजेंट लोग बैठे मेरे अलावा, मतलब कितना अच्छा बोले आप. और विवेक, मैंने बहुत साल आपके साथ काम किया, मगर इतना अच्छा और इतनी क्लैरिटी ऑफ थॉट है आपकी. इट्स रियली फैंटास्टिक. व्हाट एन एजुकेटिव सेशन इट वाज. यू टॉक, बट मैं तो आज समझा अर्बन एक्सेल के बारे में. दैट्स अ फैक्ट. आई कम फ्रॉम अ स्मॉल town, now it is a huge town, from a lower middle class. मेरा देश मुझसे 8 साल बड़ा है. मैं जिस 55 में बॉर्न हुआ था, हिंदुस्तान 47 में आज़ाद हुआ था, तो मैं हमेशा इंडिया को अपना बड़ा भाई समझ के चलता रहा. इट्स अ फैक्ट. दैट्स हाउ आई लिव्ड. और मुझे बहुत सालों तक पता ही नहीं चला कि देश में या ज़िंदगी में ईमानदारी के अलावा कोई और चीज़ भी होनी चाहिए. बिकॉज वी वर वेरी पुअर. माई फादर वॉज अर्निंग 90 रुपीज़ पर मंथ, एंड वी वर 14 in one family, दादा चाचा वगैरह, एंड वी वर हैप्पी. That was the most amazing thing. And once I asked my grandfather, I said, we are very poor, why are we happy? His answer was phenomenal. He said, when you are very poor, the cheapest luxury is happiness. तो मुझे समझ में नहीं आया कि लोग अलग तरह की भी सोचते हैं. जो हमारे स्कूल की प्रेयर थी, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मतलब 8 साल हुए थे आज़ाद हुए को, मगर प्रेयर ये थी. सो मुझे लगता था, और जितने भी आसपास रहने वाले थे, वो कोई क्लर्क था, कोई हेड क्लर्क था. सो सोसाइटी एंड नेबरहुड वाज द सेम काइंड ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर. ये तो अभी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर वर्ड्स वगैरह मैं अब इस्तेमाल करता हूँ, तब तो सब लोग, मतलब DAV स्कूल में पढ़ा था मैं, हिंदी मीडियम स्कूल में. आई वेंट टू अ स्कूल वेयर ABCD वर टॉट इन 5th स्टैंडर्ड. मतलब द first time I spoke in English was in Bombay after I came here to become an actor. So for me, life was very simple and everything was, but मुझे तो ये सिखाया गया. So मुझे कोई भी चीज़ surprising नहीं लगती थी. I ran away from home, stealing 100 rupees from my mother's temple to give an audition for my acting class. Got caught, got slapped around. मेरे नॉर्मल फादर थे, नॉर्मल मदर थे. मदर बहुत मारती थी बात बात पे. पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल
बकवास, मैंने ज़िंदगी में कभी 38% मार्क्स से ज़्यादा नहीं लिए, कभी भी नहीं. मतलब I was never great in sports also. I was so slow that once my PT teacher saw me running, he said, even if you run alone, you will come second. There was nothing extraordinary about me. So when you call me as a major guest today in a book launch, I feel very impressed with myself. So I have a greatest quality, which is, I personally feel, which is a sense of wonder about life. So every time something like this happens, and I feel everybody who is sitting here has 100% got more than 38% marks. ये तो 90 से कोई नहीं. मैं तो आज पागल हो जाता हूँ. 99% पागल हैं क्या? 99% मार्क्स लेने वाले. मतलब पेरेंट्स भी मतलब बेवकूफ़ हैं और बच्चे भी बेवकूफ़ हैं. 99% मार्क्स. But my father celebrated my failures and my mediocrity because उनको पता ही नहीं था कि शायद इंटेलिजेंट क्या मेरा बेटा क्लर्क बनेगा, जो भी बनेगा. It's only when as life unfolded itself, I suddenly discovered that there are other kinds of people also, जो बेईमानी में विश्वास करते हैं, जो चालाकी में विश्वास करते हैं. तो मेरी स्लेट जो थी वो सफ़ेद थी या काली थी, बिल्कुल साफ थी. तो धीरे धीरे उस पर इम्प्रेशन चेंज होते चले गए. When I first went to National School of Drama, that was the first time I encountered that students are different kinds of people also. We had our department of drama, means drama school के जो हमारे director थे, Mr. Alkazi, is finest teacher of actors in acting or drama in the world according to me. अंग्रेजी में बात करते थे और सूट पहनते थे और पढ़े लिखे ऐसे थे, उनको देख के लगता था हे भगवान, परमात्मा खुद एक्टिंग सिखाने आ गए हैं. उनके खिलाफ जब पहली बार मैं 3rd ईयर में था हड़ताल हुई, आई वॉज शॉक्ड. क्यों? कि ये अंग्रेजी में बात करते हैं, पढ़े लिखे हैं, ऑटोक्रेटिक हैं और हमारे को ड्रामा स्कूल में पंचुअल होने को बोलते हैं और हमारे को बास्केटबॉल बॉल नहीं खेलने देते हैं, हमको रिक्रिएशन के लिए सैटरडे संडे को छुट्टी नहीं मिलती. मैं सोचता था कि ये 24 घंटे कम है पढ़ने के लिए, 24 घंटे एक्टिंग सीखने के लिए कम है, 7 दिन कम पढ़ते हैं हफ्ते में, 365 दिन कम पढ़ते हैं साल में. आई वॉन्ट टू बी इन द लाइब्रेरी, आई वॉन्ट टू कॉन्स्टेंटली, एंड देर इज़ ए मेजॉरिटी ऑफ ग्रुप पीपल हु आर सेइंग अलकाजी साहब को निकालो, बिकॉज ये जो है इन्होंने डिक्टेटरशिप चला रखी है ड्रामा स्कूल में. दैट वॉज द माई फर्स्ट एनकाउंटर दैट देर कैन बी ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव अबाउट लाइफ ऑल्सो. There's a different narrative about life also. And Mr. Alkazi was standing there alone, और हम 8 स्टूडेंट थे. All 8 of us are very successful today. All those people who went on a हड़ताल have nothing to do in life. Nothing. वो बस नारे लगाते रह गए. और वो मिस्टर अलकाजी वहाँ पर खड़े हैं और ये इट्स लाइक मेरे स्कूल के लोग अगर मेरे खिलाफ आज हड़ताल करें तो आई विल बी शॉक. तो उनके लिए कितनी ह्यूमिलेशन. उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बॉम्बे से गए थे, बॉम्बे में थिएटर करते थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एस्टैब्लिश किया था. 35 साल उन्होंने दिए थे अपनी लाइफ के और आज उन्हीं के स्कूल के स्टूडेंट उनको बोल रहे थे ऐसे थोड़ा चलता है स्कूल, ये नहीं होता, यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पर हमको अंग्रेजी में बात करनी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है. हाँ नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मुझे समझ नहीं आएगी. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आज तक नहीं मुझे समझ में क्या होता है हमारे देश में आज जिसका. तो दैट वाज द फर्स्ट एनकाउंटर. दूसरी तो मतलब डराया गया उनको. तो मैंने कहा कि मैं तो मिस्टर अलकाजी के साथ हूँ, बिकॉज ये मेरे गुरु और इन्होंने मैंने जो भी सीखा इनसे सीखा है. तो बोल दिया, वर्ड पड़ गया, चमचा है ये साला चमचा है. बट आई नेवर, माई अपब्रिंगिंग वॉज दैट नो, आई एम जस्ट बिलीविंग दैट व्हाट माई टीचर टॉट मी. देन व्हेन आई केम टू बॉम्बे, क्योंकि मुझे अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती थी और मैं अंग्रेज़ी लिख लेता था और अंग्रेज़ी मैं पढ़ लेता था मगर बोलता नहीं था, तो मेरे को कोई सीरियसली लेता ही नहीं था. खासकर ये फिल्म के क्राउड में कि मैं सोचता था मैं इनसे ज़्यादा अच्छा जानता हूँ मगर मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता. तो आई वॉज मेड टू फील स्मॉलर बिकॉज आई कुड नॉट कम्युनिकेट इन इंग्लिश.
अगेन माई अपब्रिंगिंग वॉज दैट देयर इज नथिंग फील स्मॉल. हम हिंदी में सारे बात करते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है. बट देयर वाज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु मेड मी फील स्मॉलर बिकॉज I could not communicate in a language which they thought makes you feel superior. So there is a constant effort which people will make you feel smaller. Not, and if you think that you need to feel smaller, then you will feel smaller. But they will, as you said very correctly, they will confuse you. क्या अंग्रेजी बोलनी ज़रूरी है? तो मेरे एक चाचा जी, पहली हमारे जो चाचा जी एक ही थे ग्रेजुएट हमारे पूरे ख़ानदान में, मतलब उनको मैंने चिट्ठी लिखी और उनको मैंने कहा कि मेरे को अंग्रेज़ी बोलना ज़रूरी है मेरे लिए. तो उन्होंने कहा बेटा किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए बोलना शुरू कर दो. तो मैंने डिसाइड किया जब मैं स्ट्रगलिंग एक्टर था बॉम्बे में कि 4 बजे से लेकर 6 बजे तक मैं सिर्फ अंग्रेज़ी में बात करूँगा. मेरे सारे दोस्त 4 से 6 तक भाग जाते थे मेरे पास. आ गया अभी अंग्रेज़ी में बात करेगा. मैं चाहे सब्जी वाले से बात करनी है, चाहे किसी IAS ऑफिसर का बात करनी है, चाहे किसी अनपढ़ डायरेक्टर प्रोड्यूसर से बात करनी है, आई विल ओनली स्पीक इन इंग्लिश माय फ्रेंड. सो वो भी मैंने कर लिया बिकॉज मेरा पर्पस था कि मैं इनको अपने आप को छोटा महसूस नहीं कराने दूंगा. देन आई सेड काम नहीं मिला, 3 साल तक काम नहीं था. आई हैड टू स्लीप ऑन द प्लेटफॉर्म, आई वाज स्लीपिंग ऑन द बीच, देयर वाज नो वर्क कमिंग अप, आई हैड फिनिश्ड माई exhausted my whatever money I had earned. और मेरे फादर को तो पैसे देने की उनको हिम्मत नहीं थी. I also looked at life from a comic point of view. My first landlady was a धोबन. उनके एक छोटी सी कोई 10 बाय 8 का दुकान उनके घर था. तो बेडरूम में जो था हमारा था वो हम सोते थे 4 लड़के स्टूडेंट्स, और एक किचन जो था वो पर्दे से अलग होता था, उस तरफ उसके बच्चे सोते थे. तो मैंने उसको बोला कि मेरे को एड्रेस दे दो यहाँ का, मेरे को अपने फादर को एड्रेस भेजना है. जब उन्होंने मुझे, उसके बेटे ने जो पढ़ा लिखा नहीं था, उसने कुछ लिख के दिया कि ये मेरा एड्रेस है. जब मैंने एड्रेस देखा तो मैं ज़ोर से मुस्कुराया. उसमें क्या एड्रेस था? अनुपम खेर 2/15 खेरवाड़ी खेर नगर खेर रोड बैंड्रा ईस्ट. भाई साहब अब देखिए, दिस इज व्हाट लाइफ इज अबाउट. इनको मैंने जिंदगी भर के लिए एक स्टोरी दे दी कि अनुपम खेर ने मेरे को रोका. ये अपने बच्चों को बताएंगे, इनके बच्चे इनके बच्चों को बताएंगे, उनके बच्चे उनको बताएंगे. दिस इज अ स्मार्ट मार्केटिंग स्टेप दैट आई हैव डन. सो मेरा कहने का मतलब यह है कि कॉन्स्टेंटली पीपल लाइक दीज विल ट्राई टू मेक यू फील स्मॉलर, will try to make you confused. Finally got a first film. I was 28. I was given the role of a 65-year-old man in Saranch. शूटिंग से 10 दिन पहले मुझे पता लगा, मेरे दोस्त ने कहा कि तेरे को फिल्म से निकाल दिया है. And this is a fact. This is why I'm not scared of anybody, because that is the power of self-made person. जब आप किसी से इस बात से नहीं डरते ना, लोग आपको इस बात से डराते हैं कि ये आपकी कमज़ोरी है. तो मुझे फ़ोन करके किसी ने बोला, मेरे दोस्त थे सुहास खांडके, उसने कहा मैं कल राजश्री प्रोडक्शन के ऑफिस में गया था और वहाँ पर मैंने सुना है कि तू मेन रोल नहीं कर रहा है, जिसकी मैं 6 महीने से रिहर्सल कर चुका था. रोज़ शिवाजी पार्क जाके बैठता था और देखता था बुज़ुर्ग लोगों को कैसे अपने बच्चों को खिलाते हैं. एंड आई हैड वर्कड वेरी हार्ड फॉर दैट. और 1 जनवरी 1984 को फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी. 20 दिसंबर 1983 दिस फ्रेंड ऑफ माई टोल्ड मी दैट यू आर नॉट doing the main role, Sanjeev Kumar is doing the main role. I was horrified because I was going through worst period of my life, humiliation, lack of dignity. It was a worst. I mean, I was an educated gold medalist from the National School of Drama. So I called up Mr. Bhatt and I said, Bhatt साहब मैंने एक अफवाह सुनी है, कितना लोग बकवास करते हैं कि मैंने सुना कि मैं ये रोल नहीं कर रहा हूँ. भट्ट साहब बड़े कैजुअली बोले, हाँ अनुपम और राजश्री पीपल वांट एस्टैब्लिश्ड एक्टर, दे आर नॉट टेकिंग ए न्यू कमर, सो डोंट वरी, यू डू द अदर ओल्ड मैन्स रोल, ओके बाय. So then I thought, this is an amazing, unbelievable industry that I am made to feel that, and he's so casual about it. In fact, I just went to his house this last night. So मैंने कहा कि मैं इस शहर को छोड़ देता हूँ. This city does not deserve me. I will go back, I will become a teacher, I will become in Lucknow, in Shimla or in Delhi, but I will leave this city. But now I said, now I can tell him what I think of him. Because my grandfather used to say always that if you want to be equal with anybody in the world, just don't expect anything from the other person.
if I don't expect anything from, if I'm not expecting anything from you, sir, then we are equals ना. तो मेरे को सडनली इस बात से पावर का एहसास हुआ. मैंने टैक्सी में अपना सारा सामान रखा, होल्ड ऑल होते थे उन दिनों, वो बिस्तर लगा के और ट्रंक रखा अपना, और मैं पहुंच गया भट्ट साहब को बताने कि व्हाट डू आई एक्चुअली थिंक ऑफ हिम ऑन माई वे टू वीटी स्टेशन on the 21st of December 1983. So lift was not working. He was on the 6th floor. Green Acre, I still remember, Pali Hill. पर आदमी को जब बहुत गुस्सा आता है ना तो बहुत शक्ति मिलती है. तो मैं लिफ्ट में गया, मैंने दरवाज़ा खोला, भट्ट साहब को लगा, उन्होंने कहा, अरे दिस इज़ फैंटास्टिक, यू आर टेकिंग, दिस इज़ अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, आई एम ग्लैड यू आर डूइंग द अदर ओल्ड मैन्स रोल. मैंने कहा भट्ट साहब एक मिनट रुकिए. आई टुक हिम टू हिज विंडो. आई सेड वो टैक्सी देख रहे हैं, इसमें मेरा सारा सामान पड़ा है, मैं जा रहा हूँ शहर को जाके, पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप दुनिया के सबसे बड़े फ्रॉड हैं. मतलब दिस इज तो वेरी माइल्ड वर्जन ऑफ लैंग्वेज आई एम टॉकिंग टू यू. दिस इज द माइल्डेस्ट. सब बोल रहा था मैं, मतलब जो भी मुंह में आ रहा था, बट आई वॉज क्राइंग ऑल्सो, आई वॉज डेस्परेट, आई वॉज हॉरिफाइड. और फिर मेरे को जब कोई फाइनली एक गुस्से में एक क्लाइमैक्स की लाइन मिलनी बहुत ज़रूरी होती है कि ये अब कोई क्लाइमैक्स की लाइन नहीं मिल रही थी. जब मुझे कुछ नहीं मिला तो मैंने कहा, और भट्ट साहब आप सच्चाई पे फिल्म बना रहे हैं, आप में खुद में सच्चाई नहीं है, आप कैसे ये फिल्म बना सकते हैं सारांश, आपकी फिल्म तो झूठी है, और अब लाइन नहीं मिल रही कोई कमाल की, और आपकी फिल्म झूठी है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैं आपको श्राप देता हूँ. तो मैंने भट्ट साहब को पकड़ क्या बोला, I was howling. I was desperate. I was so sad. I was so disappointed, so hurt, so dejected. But मैं अब तो मैं हंसते हुए बोल रहा हूँ, बट उस समय और मैं बोल के श्राप देता हूँ, और मुझे लग रहा था यहाँ से कुछ निकल जाए जरा, वो चिंगारियाँ तो मज़ा आ जाए, यहीं पे भस्म हो जाए. मैं फिर 9-6 सीढ़ियाँ उतरा और मैं टैक्सी में बैठा, और भट्ट साहब ऊपर से चिल्लाए, अरे ऊपर आ, ऊपर आ, अरे ऊपर आ. फिर मैं चढ़ा सीढ़ियाँ, वो आया और मैं ऊपर गया, उन्होंने फ़ोन उठाया और राजश्री में फ़ोन किया, उन्होंने कहा ये फिल्म तो मैं अनुपम खेर के साथ ही बनाऊंगा. एंड एज दे से रेस्ट इज हिस्ट्री. नहीं ऐसी की तैसी नहीं, मैं कुछ नहीं जानता. तांबे चौंतीस साल से दोस्तों 515 फिल्में करने के बाद आदमी बाहर जाना चाहता है. सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट. जाओ, ओके, आ जाओ. इनकी दुकान दूसरी जगह लगने वाली, जाओ. यहाँ की फोटो हो गई, आई कैन अंडरस्टैंड. ओके दादा, थैंक यू. नहीं आई अंडरस्टैंड. नहीं जाओ भी, हटो. तांबे जी आपके फोटोग्राफ मुझे मिले, मुझे अच्छा लगा. सो व्हाट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू से, व्हाई दिस होल, दिस हैज नथिंग टू डू विद, बिकॉज मुझे आपने बड़ा इंटेलिजेंट बनाया आज. मुझे पता ही नहीं था कि मैं इस तरह की अच्छी बातें करता हूँ. नो सीरियसली, दिस इज व्हाट माय आई थिंक स्ट्रेंथ इज, दैट आई नेवर रियलाइज दैट मैंने ये जरूर पता था कि जब इन्होंने फिल्म कंप्लीट की तो मैंने कहा विवेक ने के साथ मैंने पहले काम किया, मेरी कंपनी में काम करते थे, इनकी बाकी फिल्में देखी हैं, बट ये फिल्म इसने यहाँ से निकली है, इस फिल्म के बाद ये एज ए पर्सन चेंज हो जाएगा. बिकॉज दैट इंसिडेंट ऑफ श्राप चेंज्ड मी, इट ऑल्सो मेड मी रियलाइज कि आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई भी आपको निकाल सकता है किसी चक्कर में. द अदर डिसइल्यूजनमेंट, बिगेस्ट डिसइल्यूजनमेंट केम in the form of India against corruption. India against corruption, again I said हिंदुस्तान के बारे में बात हो रही है. हिंदुस्तान के बारे में पहली बार कुछ ऐसी बात हो रही है जिसमें लोग इकट्ठे हो रहे हैं हज़ारों की तादाद में. आई वाज शूटिंग इन पुणे. I never knew who Manish Sisodia was, who Arvind Kejriwal was, who I only knew अन्ना हज़ारे. और मैंने उनको खुद फ़ोन करके बोला मैं इस मूवमेंट को ज्वाइन करना चाहता हूँ, बिकॉज ये हिंदुस्तान के बारे में है और हिंदुस्तान की एक सर्टन ब्रीड के बारे में है. सो मैं गया,
और मैंने वहाँ पे स्पीच दी और मैंने बोला और मुझे लगा कि बड़ा अच्छा है और कितनी बातें हो रही हैं। एंड इट टर्न्ड आउट टू बी सो डिसअपॉइंटिंग. It was so disappointing. The biggest disappointment, one of my biggest disappointment is the outcome of India against corruption. No. Look at, I see the pictures of Arvind Kejriwal lying down in some office. I feel how the majority of youth of India was conned by these certain people. How means I don't have, मैंने अभी और 500 फिल्म करूंगा, मगर मुझे किसी से डरने की, जब आप सच बोलते हैं ना तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है. You see why this book is important today, not because it's and I represent Hindi cinema, Bollywood, so to say that Bollywood में ऐसा बात नहीं, मैं भी Bollywood की बात करता हूँ, ये भी Bollywood फिल्में बनाते हैं, so we are not different. So there is a very strong power in Bollywood. The Hindi cinema has a great power, and I am a complete Hindi film actor. So I don't agree with this that Bollywood does not do things. I'm a part of people that if they listen to me, if I talk about it, that's because I am part of it. So I'm very proud to be part of it. Why is this book important? But again, there is a scenario going on where you are made to get confused. आपको लोग आजकल के ज़माने में आपके किचन में घुसाए हैं, आपको क्या खाना चाहिए, आपको क्या नहीं खाना चाहिए. When I started speaking about 2 years back about India and about आज सेना के बारे में बात करो, लोग कहते हैं ऐसा क्या होता है सेना के बारे में, क्या वो अपना काम कर रहे हैं. मतलब कैन यू इमेजिन, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है. If there is a person who is pretending to be the, hopefully they think and their people think that he will be the next prime minister. आज मैं कोका कोला जो है वो पहले शिकंजी बनाता था, देश का प्राइम मिनिस्टर कैसा होगा, ऐसा होगा. Means are you cuckoo about it? I'm sure that he's a very nice person or whatever it is, but I want a prime minister who makes me feel proud of it. But because in the last 4 years there is no corruption, so let's confuse it. यार बड़ा disciplined आदमी है, अपने बारे में सोचता है, हाँ अपने speeches देता रहता है. Every single day there are 5 tweets about somebody who is doing some small work over there. रोज हर संडे को मन की बात करता है. क्या होता है मन की बात, ऐसा थोड़ा होता है, हम भी कर सकते हैं. योगा करता है, योगा पॉपुलर बना दिया. सो हाउ दे आर कंफ्यूजिंग यू दैट द मैन हु इज डूइंग द ग्रेटेस्ट वर्क फॉर आवर कंट्री, लेट अस पुट एलिमेंट ऑफ डाउट इन हिम, अबाउट हिम, विच इज वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड विच मेक्स यू फील वेरी एंग्री. हिंदुस्तान, अनुपम खेर देश के बारे में बात करता है, जरूर पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहता होगा. इसकी बीवी बीजेपी में, इसलिए बीजेपी के बारे में बात करता है. इसको फिल्मों में काम नहीं मिलता है, इसलिए ये देश के बारे में बात करता है. सो पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट कंट्री, लेट्स पुट डाउट अबाउट दीज पीपल इन एवरीबडीज माइंड. बहुत अच्छा बोला आपने. मैं कभी बाप माँ 4 थप्पड़ मारेगी कि नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स. आज मैं बीफ खाना चाहता हूँ, माँ तूने आज तक मुझे दूध पिलाया है, आज मुझे बीफ खिला. So, and then they will try to make you, बड़े editors आपके बारे में editorial लिखेंगे. They will try to make you feel, how are you? He is my student. I've seen you after so many years. How wonderful. So, very thankful to you for writing this book. And thankful to you for everybody who came out and are taking the world head on. Because that is the only way. मेरे जहन में एक सेना वाले की इज्जत पता क्या है? इट हैज समथिंग वेरी सिंपल इंसिडेंट. आई वाज हमारे शिमला में 4 थिएटर थे, शाही सिनेमा, रिट सिनेमा, रिवोली सिनेमा एंड रीगल सिनेमा. शाही सिनेमा वाज द स्ट्रेंजेस्ट काइंड ऑफ थिएटर. उसमें जब तक टिकट विंडो नहीं खुलती थी, लाइन होती थी. जैसे टिकट विंडो खुलती थी, लाइन टूट जाती थी. उससे पहले लोग प्रिटेंड करते थे कि हम बड़े डिसिप्लिन लोग हैं. तो 2 बदन फिल्म लगी थी मनोज कुमार जी की, 2 बदन. तुम सब लाइन में खड़े थे, एक्टिंग कर रहे थे, लाइन में खड़े हैं. अभी खिड़की खुलेगी तो खिड़की वाला जो टिकट बेचने वाला होता था, उसकी सिर्फ इतनी सी वो पिजन होल होता है ना, जैसा छोटा सा, तो उसमें आपको हाथ डालना होता था.
वो आपको टिकट पैसे देते थे, आप उसको, वो आपको टिकट देता था। तो मेरे से आगे एक फौजी खड़ा था, वो भी पिक्चर देखने आया था, एंड ये वजह हवलदार फौजी वो खड़ा था और लाइन में खड़ा था, और जैसे ही टिकट खुली हुड़दंग मच गई, लोग ऐसे ऐसे करें, तो उसने भी थोड़ा हिल के अपना पैसा डाला, उसने कहा 2 टिकटें देना। तो बिकॉज देयर वाज टू मच हैपनिंग आउटसाइड, तो अंदर से उसने बोला, किसी ने, उसको पता नहीं था कौन है, उसने कहा कि घबरा मत, देता हूँ, इसको बोला। इस आदमी ने हाथ से उसका गिरेबान उठाया, पकड़ के उसको 2-3 इंच ऊपर किया, उसने कहा हरामजादे, गोली से नहीं घबराया तो तुझसे क्या घबराऊंगा। That will never go out of my system ever. मेरी आंख में मैंने पूरी पिक्चर ऐसे नहीं देखी, ऐसे देखी। गोली से नहीं घबराया भाई साहब, तेरे से क्या। No script writer has written such a more bigger brilliant dialogue than this कि हरामजादे, गोली से नहीं घबराया तो तुझसे क्या घबराऊंगा। So how can I not talk about a man standing on the frontier and helping us? How can I not applaud a person who is in a वर्दी? आज ये बड़ा आप अच्छा बोला कि the difference between, शब्दों का जो खेल आपने बोला कि militant और terrorist। कल परसों एक बहुत बड़े चीफ एडिटर को मार दिया गया है, उसके बारे में थ्योरीज बनाई जा रही हैं। अरे सीधा बोलो कि टेररिस्ट ने मारा है। इट्स अनफॉर्चुनेट दैट देयर इज अ जर्नलिज्म पर सबसे बड़ा प्रहार जो हुआ है वो परसों कश्मीर में हुआ है कि एक न्यूज़पेपर के एडिटर को मार दिया है, एंड देयर इज नो आउटरीच। दे आर ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ, उसको भी अलग किया जा रहा है कि नहीं, शायद कुछ इसको सिर्फ फोर्सेस में से किसी ने शायद सो हाँ एग्जैक्टली सो people who are sitting here, please tell your friends, take people head on who are trying to sort of talk about against my country. My country is the best country in the world today. I know it and you know it. और बहुत अच्छा किया आपने ये कॉइन किया ये वर्ड। अच्छा, उनको वो बहुत चिलमिला जाते हैं, वो आपको कैसे डिफेंसिव कर सकते हैं, भक्त है, चमचा है, बीजेपी का स्टूल है, राइट विंगर है। मैं पक्का आपसे बेटर हिंदुस्तानी हूँ, दैट्स द प्रॉब्लम। वो आप में गट्स नहीं। बस मैंने जितना बोलना, और भी कुछ लिखा है, बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, थ्योरी फिर हुई ना। तो मैंने किताब लिख दी, मेरी अभी किताब की बात है। भाई साहब क्या हुआ? मेरी लाइफ में कभी ऐसी इनसिक्योरिटी नहीं हुई। There was a very famous film, To Be or Not to Be. उसमें जो जब टू बी और नॉट टू बी हैमलेट जब स्पीच देता है, तो हैमलेट की जो वाइफ जो रियल उसमें बैठी होती है, वो उसका सीन है, तो उसका लंबा स्पीन है, तो जो एक हीरो जो है वो जाता है बिकॉज दैट इज द ओनली टाइम ही कैन मीट हिज वाइफ और समथिंग लाइक। तो एक्टर के लिए बड़ी इनसिक्योरिटी है कि ऑडियंस उठ के जा रही है, उनका तो समझ में आ रहा है, आप कहाँ जा रहे हैं। सो आई रोट ए बुक in English called The Best Thing About You Is You, about life coaching, not about acting. तो वो बिकॉज सिंपली लिखी थी, मैंने एयरपोर्ट पे लिखता था, मैं उसको लाउंजेस में लिखता था कि एंगर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, एंगर इज़ द वर्स्ट इमोशन इन द वर्ल्ड। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक अबाउट टुडे, इट्स अबाउट योर बुक, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से समथिंग डिफरेंट। सो वो चलते चलते वो बेस्ट सेलर हो गई। तो मैंने अपने पिताजी को कहा, हु वाज वेरी अनवेल, मैंने कहा पापा मेरी किताब अंग्रेज़ी में बेस्ट सेलर हो गई। तो उन्होंने पता क्या जवाब दिया था? अल्लाह मेहरबान तो गधेड़ा पहलवान। वो सिर्फ एक रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं वही बोल सकता था। तो थैंक यू विवेक फॉर दिस, एंड आई पार्टिसिपेटेड इन द फिल्म एंड स्टेड in the hostel or ate with everybody because there is an actor alive in everybody. You don't do a film because of the philosophy, you do the film because of the role. I thought the role had lots of conflicts. It's only after I did the film I realized कि मैं आपसे पूछा भी था, मैंने कहा यार एक प्रोफेसर अपने स्टूडेंट को गलत क्यों बोलेगा? तो उन्होंने कहा खेर साहब आप मेरी बात मानिए, ऐसा होता है।
तो हमारे तो सारे जितने प्रोफेसर थे, टीचर थे, वो मेरे एक टीचर की 7 बेटियां थी, वो पढ़ाते कम थे, उनको इसी की टेंशन रहती इनकी बेटियों की शादी कैसे करूं. And over here there was this professor who was actually making these urban nexals for in the country. So thank you for writing this. Thank you. It was very educative and thank you. आप लोगों ने हंसा मेरे बातों में, मुझे अच्छा लगा. Thank you. चलिए. आइए. कि ये अभी भी कॉमेडी नहीं है. मैंने बहुत अक्लमंदी की बातें भी की, ऐसी बात नहीं है. I said you're still game for it. Of course. साइन करके जाइए. Before we proceed, I would like to call upon Yogini Deshpande ji on the stage to speak a few words. Thank you, Anupam ji. Thank you, Vivek ji. Thank you for being here today evening in this what was supposed to be a formal gathering, but has gone on to become a very, very informal gathering. We hope to see all of you every time we do a launch or have an Indic talk. Please follow us on Facebook, Indic Academy, or Indic Today, and Indic Book Club to get more updates of different programs that we will be doing every month. Attention please. Attention please. क्या मीडिया होगा तो ये मीडिया होगा तो ये सब पे और हाँ हाँ, वो तो जरूरी भी है. नहीं ठीक है. In the Indic Academy, we have very, very talented people, famous people who've already achieved a certain this in their life, as well as people who are coming. That's why I said we believe in the aspect of nurturing talent, nurturing philosophical thought. So one of our volunteers and our Indic members is Mr. Shri Kushal Namdar, who is a National Award winner, music composer. Another gentleman is Mr. Amish. He isn't here today, but he's a very well-known author. Many of you have would have probably heard of him. He's the author of Shiva. अरविंदो आश्रम में एक Shiva लिटरेचर Trilogy. फेस्टिवल है. Obviously, Vivek Agnihotri ji. अगस्त सितंबर में. And Mr. Sandeep Singh is also a part of the Mumbai Indic Academy. मैं तो अभी 23 जुलाई के बाद On अमेरिका behalf जा of रहा Indic Academy, I would like to give a vote of thanks and a small 40 दिन gift. के लिए इसी बुक के टूर 20-25 Mr. Kushal Namdar would do the please do the honors to give a gift to Mr. Vivek Agnihotri ji and Mr. Anupam Kher. थैंक यू. क्या बोलते हैं, कुछ दे रहे हैं? God, books. The gift is also a book. I might. Vivek ji, you mentioned when was the last time the book was We are given as a giving gift? books. Thank you very much. I would request Mr. Chandrahas Malai to give a gift to Mr. Sandeep Singh. And Vijay Patil would give a gift to Mr. Jagannathan. Thank you, Jaggi. A big applause and others for Mr. Jagannathan. I think there are very few editors who could take the risk with a badge of honor and shift from First Post to Swarajya. So big round of applause for doing that. Nobody was doing it for a 1 year. We would continue with a book signing if you have. Sorry to interrupt in between. There would be a short media engagement question and answer session. Perfect. Before we. I'll have to leave. Thank you so much.